So we welcome Vijay Kumar sir. So now I request Lakshmi to introduce Vijay sir. Thank you. So, good morning everyone. Welcome to day 10 and the final day of Theatre in Education program. Today we have our speaker to speak in the topic Inculcating Theatre in Education, the NSD Tripura module by Dr. Vijay Kumar Singh. Mr. Vijay Kumar Singh was born in 1974 at Gorakhpur. He holds his MBA degree from Gorakhpur University and received a diploma in dramatic art from Bharatendu Natya Academy, Lucknow. He was awarded Mrinal Sharma Smriti Chinha for Best Student by BNA and received honor of fellowship in the field of theatre on acting in one-man show granted by HRA Department of Culture Ministry, Government of India 2001 to 2002. He has been an actor, teacher in TIE Company of National Schools of Drama, Delhi for 10 years, appointed as an Assistant Camp Director of NST, Tripura, and teaching theatre drama in education in 1 year TIE course. We very heartily welcome you to the session, sir. To all the participants, after the session, we have a special session by Honorable Nasser, sir. So we request you to stay after this Q&A session. Thank you, sir. So, welcome to all, and Honorable Nasir sir, with your permission, I would like to start my session. So, all of you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, give me a little bit feedback. That's why, because we don't have any feedback. Yes, sir. So, Yeah. so time to time, I will listen. ask you. Yeah, I will ask you. Yeah, yes, no. You can just give a thumb. Yeah, you are hearing. Yeah, there's no problem. So I will take a little bit liberty to speak in Hindi and English both, and I will explain in whole session what is TIE, and I would like to explain some confusion between what is TIE and what is education in theatre and what is theatre in education. What is teaching theatre and what is teaching through theatre. Why it is important, drama teacher, to learn pedagogy. So in a lot of confusion, any artist can teach or not teach. So this is a lot of things is going on, and we go to our prospectus so you can understand all the our approaches in this session. I would like to start with Ratan Themji, who has been with us 4 years and monitoring our work, and give them one blessing and a remark on this institution. So he's from Northeast. So we just play a little bit clipping, and after that I will play some clipping of a TI program, 6 minutes, so you can understand what kind of work is going on. Because without visual, if I talk a lot of things, a lot of information, you cannot get the idea of the TI. So these two clippings, and after that we just go through our prospectus, what kind of our content, detailed content. So we just, what is the content and why we are approaching this content and how we are approaching training in India, because we have been 8 years had been completed here. So now we are doing, and right now we are in the crisis because we are not prepared for the online work in India. So we just at the end we share what kind of online work we are just researching in right now. So a little bit I will explore you and share with you, and in between I will give you some 3 minutes idea of what is the educational kind of work, how actor approach education, how teacher approach. So it's a practical thing. So little bit, if you have in your house 8 to 16-year-old children, so when I call you, please you
you sit your besides your in-house, if any kind of in between the age group any children, so you please ask them to fill it for the 10 minutes. Okay, so if it is possible, otherwise you can also participate in this section. So these are the 1 hour sessions. We are going to give you very quickly all the things and all the kind of things, and at the end of the and one more things, it's very I am very happy ki, the first batch student pass out, Mr. Chandramohan is also with us. I hope he is here. Mr. Chandramohan, you are here? Yo. So maybe he will join later. So he will also contribute to 2 minutes, 3 minutes his experience in Tamil Nadu, what kind of work he is going on and what kind of approaches he is doing here in Tamil Nadu. So we can get feedback from them, because he also has been working with the Shammukh Raja, Nisar sir, and all these kind of great guys. So I am very happy, and I am very eager to listen from that side. So you will get the idea. So this is the whole program I will just going to present with you, and I am very happy. All the organizers who invite me and give me the chance to share with you this kind of work, and it's very important and very ignored work in India, because drama, National School of Drama is very popular for the film and for the theater work. A lot of actors is in the film, and a lot of work is in theater world. But the theater education work is as a repertory company. You have heard yesterday they are talking about the repertory companies, what kind of working. I has been also the 10 years in a repertory company, theater and education company. So I have experience, but this is the academic work. This is the different from the repertory work, because repertory work has explored a lot of work, and but here we teach graduate people who work with children, who work in school as a drama teacher, who work with in society, for the social work, for the therapy work, for the theater in whether he is teaching theater in the school. So so what is the right method and what is the right way to teach all those things in the theater? Because a lot of confusion. This concept is theater education concept is from the England. I will later I will explain you why this this word theater in education, why we are using this word, and others. A lot of theater education related work is India. A lot of work is doing on in South में भी बहुत सारा काम हो रहा है theater education को लेकर के. Not theater education exact that form, but related work is going on. A lot of people for global world से connected हैं और काम कर रहे हैं. सब ये सब चीजें बहुत अच्छे से हो रही हैं हमारे इस साउथ में भी. और साउथ में बहुत सारा रेंज है, जिसमें कर्नाटक, पुडुचेरी और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब बहुत सारा एरिया है जिसमें हो रहा है, और हम थोड़ा थोड़ा सुनते रहते हैं. So there is first batch 2 pass out, Manjushri Venkata and Chandramohan. They are working in Tamil Nadu. So first of all, I would like to say, please हम शुरुआत करेंगे अपने जो गुरु लोग हैं उनको थोड़ा सा प्रणाम करते हुए, क्योंकि उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है. और ये मेरा बिलीव है कि जो कुछ हमने सोसाइटी से सीखा है हम वापस सोसाइटी को दे दें. दिस इज माई बिलीव. मैं इसको अपने साथ नहीं ले जाना चाहता. आई वॉन्ट टू शेयर विथ ऑल द पीपल. तो ट्रेनिंग तो स्टूडेंट्स की हम दे रहे हैं, लेकिन जब कभी मुझे मौका मिलता है आई विल शेयर. और ये मेरा अपना नहीं है, ये समाज के लिए है, सोसाइटी के लिए है, और हर एक देश के हर एक जगह पे ये काम हो. ये मेरी दिली इच्छा है, ख्वाहिश है कि हर लोग इस काम को, इस टेक्निक्स को सीखें और बच्चों तक ले जाएं. जो हमारे बच्चे आने वाले भविष्य हैं, तो उन तक एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छा थिएटर, एक अच्छे पर्सन के तौर पे वो डेवलप हों. ये सब चीजें हम उनको बताने वाले हैं.
तो ये मेरा अपना बिलीव है। तो दैट्स वाई मैं भी चाहता हूँ तमिलनाडु में इस तरह का काम बहुत फैले और भी फैले, और इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट हमारे साथ काम करना चाहते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट से भी मैं अनुरोध करूंगा, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसका, कि वो हमारे साथ मिल करके टीचर ट्रेनिंग्स के काम में हम उनको सहयोग कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे काम कर सकते हैं। आने वाले समय में भी हम कुछ ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग के काम शुरू करेंगे, जिसमें वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं और सीख सकते हैं। रिसोर्सेज और नॉलेज पूरे वर्ल्ड में बहुत है आजकल, तो बहुत इजी है। वी कैन गेट एनीथिंग फ्रॉम वेबसाइट्स, एंड इसमें हम आपको कई वेबसाइट्स के बारे में भी बताएंगे, कई बुक्स के बारे में बताएंगे, कई और भी बहुत सारे जो किस तरह से काम हो रहा है वर्ल्ड में, उसका भी थोड़ी थोड़ी ग्लिम्सेस पॉसिबल जितना हम दे सकता हूं मैं ये करूंगा। सो दिस इज माय साइड। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ clippings. Please, can you play? Listen, Mr. Ratan Thyam is talking about our institute, and after that we play this video. Yeah. The National School of Drama Center I mean, it is out of our centers of National School of Drama in Bangalore, in Banaras, in yes, Sikkim. This center is coming up for the theater in education program, and it is really giving a good combination of knowledge and culture to the people, to the students, and when they are going out, we could see the result. It will flourish more and more in near future under the guidance of this director over here. The present director Vijay has really put all his effort, whatever he could do, to this project, to this Center of National School of Drama. And that's how I expect a very bright future of this Center of Theatre in Education of National School of Drama in Delhi. Thank you very much.
So very inspired. So he inspired us very. Always he's talking about this center. He's very about possessive because this center is from the northeast. So he's a very loving person and giving a lot of ideas about this work, because he is a genius of theater, or he is looking theater education in different perspective. So that's why it's very important to listen and understand the theater world, theater person is कैसे इस चीज को हमारे ले रहे हैं. So next we move on to the next, what is the theater in education. So just go through this idea, then I will play one more clipping. There is some confusion among the people about this. This is possible to learn from all theater. You have to understand this one thing. Okay, this is the possible to learn all theater, but this does not means that all theater are clearly designed to be the educational. Sub purpose is हम सीख सकते हैं, हम नाट्य शास्त्र से, हम दुनिया के ग्रेट मास्टर्स के प्ले से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसका पर्पस एजुकेशन के लिए हो. So this is the theater education में this is the very important thing कि इसका purpose is educational है, not entertainment. So here it is necessary to understand what is the basic difference between education in theater and theater in education. Some people understand theater in education as for ज़्यादातर लोगों को ये थोड़ा सा होता है कि teaching drama in school, performing play and doing plays with children, for children. So these are work is exactly you are teaching theater, you are doing theater. In children theater also there is a very big confusion because we are not using in 21st century children theater because it's divided a lot of confusion. So in children theater there is two things. One is adult performing for children. So a lot of work is adult performing for children. TI is also adult working adult performing for children. Griff's theater also working is adult performing for children. 4 के बीच में ये इंग्लैंड में जिसमें स्कूल के अंदर जितने भी तरीके के काम होते थे, चाहे वो सब्जेक्ट एज अ मेथड, सो उसमें आर्टिकल्स होते थे सारे. तो वो काम थिएटर एजुकेशन का शब्द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज थिएटर इन एजुकेशन कि स्कूल के अंदर जितने भी तरह के काम है उसके ऊपर एक मैगजीन निकलती थी. सो बाद में बिल ग्रेट कंपनी ने एक 60s में एक पायलट प्रोजेक्ट किया और उसके भी पहले बहुत सारा काम जो है ब्रेख्त का और सोशल में बहुत सारे वर्क हो रहे थे जो एजुकेशनल पेडागोजिकल थिएटर थे, उनसे कनेक्ट होकर के उससे पहले भी ब्रैंडवे एक पार्टिसिपेटरी थिएटर करते थे, शुरू करते थे. स्कूल के अंदर जाकर के बच्चों के साथ एक नाटक करते हैं जिसमें वो बच्चे पार्टिसिपेट्स करते थे. तो वो जैसे पेनेक्यू टाइप के प्लेज या बहुत क्लासिक्स प्ले जो बच्चों एक लिटरेचर में हिट लिटरेचर्स हैं उनको लेकर के स्कूल्स में कर रहे हैं. तो ये तब हुआ था, लेकिन इसके बाद एक बहुत सीरियस रिफ्लेक्शंस आया नाटक में. वो रिफ्लेक्शन आया जॉन डिवी एक एजुकेशनिस्ट अमेरिका के हैं, उन्होंने कहा कि लर्निंग जो तभी हो सकती है लर्निंग बाय रिफ्लेक्टिंग से हो सकती है बेटर. सो लर्निंग बाय रिफ्लेक्टिंग का जो आइडिया है जॉन डिवी का, जिसमें एक्सपीरियंशियल वर्क की बात करते हैं, वो ड्रामा एंड एजुकेशन एंड थिएटर एजुकेशन का बेस है. ब्रेक थिएटर उसका बेस है. तो ब्रेक्थियन थिएटर का जो बेस है, जो उसकी टेक्निक्स है, और भी बहुत सारे लोग जो उस वक्त के काम कर आर्तो हैं और इस तरह के जो आप थिएटर वर्ल्ड में सुनते हैं, पीटर ब्रुक का काम, तो ये जो वर्क हैं ये सब थिएटर एजुकेशन के बैकग्राउंड है. उसके बाद ये बच्चों के लिए ये काम शुरू हुआ, स्कूल के अंदर रिसर्च हुआ. तो टीआई प्रोग्राम्स इसका सबसे, आपको कैसे इसको रिकॉग्नाइज करेंगे? टीआई प्रोग्राम के थ्रू. टीआई प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं कि स्कूल के अंदर किसी सब्जेक्ट पे रिसर्च करके एक्टर टीचर प्रोग्राम्स बनाते हैं और उसके बिटवीन बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं, उनको एक मौका मिलता है रोल प्ले करने का भी, रिफ्लेक्ट करने का भी, और कोई चीज ढूंढने का भी. उसको वो एक्सप्लोर भी करते हैं एक्टर के साथ. तो ये प्रोग्राम जो हैं 1 घंटे के भी हो सकते हैं, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 2 days, एपिसोडिक 3 times, 4 times, इट्स डिपेंड्स ऑन द इशू.
तो इस तरह के प्रोग्राम्स इंग्लैंड में बहुत चले और इंडिया में भी इसके माया राव जी थिएटर एजुकेशन प्रोग्राम्स को किया है और भी कई लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है। यहाँ हमने स्टूडेंट्स के साथ हर साल, चूंकि ये कोर्स का एक हिस्सा है पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम, सो हम उनके साथ एक्सप्लोर करते हैं पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम की टेक्निक्स सिखाने के लिए कि कैसे एक किसी भी चीज को एजुकेशनल कैसे बनाया जाए, हाउ टू मेक एजुकेशनल एनीथिंग। So there is some certain of techniques we can use it. So उसकी एक क्लिपिंग हम आपको दिखाते हैं, देन आफ्टर दैट उसकी टेक्निक्स पे बात करेंगे कि वो क्या एक इंग्रेडिएंट्स है जिसको हम एजुकेशन में यूज करते हैं, एंड एनीबडी कैन यूज इट और एनीबडी कैन गेट सक्सेस। सो प्लीज सेकंड क्लिप प्लीज। सो प्लीज, एक थिएटर एजुकेशन प्रोग्राम है गणित मंथन, जिसमें फियर ऑफ द मैथमेटिक्स पे हमने इसको तैयार किया फॉर द 8th क्लास। नमस्कार, मेरा नाम है मालविका भास्कर और इस वक्त हूँ मैं NSCTID त्रिपुरा थिएटर एजुकेशन सेंटर में। यहाँ पे हमने गणित मंथन, एक मैथ्स के ऊपर पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम तैयार किया, जो कि तैयार किया था 7th बैच के साथ, और इस साल 8th बैच के साथ इसको दोबारा एक्सप्लोर किया गया, जिसमें मैंने एज एन असिस्टेंट डिजाइन एंड डायरेक्शन के तौर पे काम किया, और जिसको डिजाइन और डायरेक्ट किया है यहाँ के सेंटर डायरेक्टर विजय कुमार सिंह सर ने। तो आइए आपको लेके चलते हैं विजय कुमार सिंह सर के पास गणित मंथन की और डिटेल जानकारी। गणित मंथन एक तो पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम है, जिसमें पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम का मतलब ये हुआ कि ये जो नॉर्मल नाटक है उससे डिफरेंट होता है, जिसमें बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं, सोचते हैं। इसमें क्या सोचने से ज़्यादा कैसे सोचना है इसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस होता है, और ये एक स्टेज परफॉर्मेंस और एक लेसन की तरह बच्चों के सामने आता है। Different types of sums. तो अपना बात का डेट याद है? डेट, सिर्फ डेट के मंथ नहीं है, सिर्फ डेट याद है ना? यहाँ देखिए सब लोग, और मैं जो पूछूंगा वो जवाब देना, ठीक है? तुम्हारा जो डेट है यहाँ पर है नहीं है? तो गणित मंथन में हमारी कोशिश रही है कि जो बच्चों की समस्या होती है गणित से बहुत करते हैं, तो हमारे एक एजुकेटर हैं, मैथ एजुकेटर सुब्रमण्यम, जिन्होंने किताब लिखी आई हेट मैथ आई लव मैथ, तो उसकी कुछ पोर्शन को हमने लिया और सुब्रमण्यम जी ने भी हमारे साथ काफ़ी सहयोग किया इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए। मैं मैथ से फन ले रहा हूँ, मैथ से फन। अगर मुझे मैथ से जरा ताकि तो मैं फर्स्ट आ जाती। मम्मा आप नहीं समझोगे, I just hate math। तो मैथ इजी है, ऐसा तो नहीं कहा मैंने, तो डिफिकल्ट है, अरे मैंने ऐसा भी नहीं कहा। तो बच्चे कैसे उस डर को भगाना और मैथ को कैसे आराम से वो कर सकते हैं, और मैथ जीवन में कहाँ है, उसके साथ उनका कनेक्शन क्या है। हम लोग जो मैथ पढ़ते हैं ना, वो क्या हमारे लाइफ में होता है, तो हम लोग जानने थे। वेरी गुड, जो हमारा एज, वो भी हमारा क्या है, गणित ही है। ओके, और टाइम भी एक मैथ। ओके, आप लोगों ने आपको क्या पता? और इसके साथ इस नाटक के अंदर हमने थोड़ा रामानुजम के कि कैसे उन्होंने गरीबी में मैथमेटिक्स करके और इतने बड़े मैथमेटिशियन बने, और इसके साथ आइंस्टाइन मैथमेटिक्स को लेकर के क्या सोचते हैं वो कि मैथ क्या है, तो इन सब चीज़ों को थीम को उसमें रखा गया। तुम रामानुजन को जानते हो? रामानुजन
ये कौन सी फिल्म का हीरो है? फिल्म सा नहीं, फिल्म का हीरो। आप इस नाटक में डॉक्टर आइंस्टाइन हैं। अच्छा, ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? मैं एक सूट पहन रहा हूँ, आप भी पहन लीजिए। मैं वरना स्पेस में जाके तो मैं फेल क्यों हो गया? बाकी सब्जेक्ट में तो मेरे अच्छे नंबर आए। ऐसा इसलिए हुआ, मैथ में कम क्यों? क्योंकि तुमने लगा था, समझा कुछ भी नहीं था। हमारी तरफ से कोशिश ये है उसमें कि मेन समस्या जो हमें ये समझ में आए कि जो बाकी विषय जब बच्चे पढ़ते हैं तो कहीं से भी पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, वो पास हो जाते हैं, समझ जाते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम ये कि प्राइमरी से लेके अपर तक अगर वो कॉन्सेप्ट उनके बीच क्लियर नहीं है तो वो आगे जाकर उनके डिफिकल्ट होता है कि वो टेस्ट करते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, कई बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। ये बताइए कि टीचर और पेरेंट्स मिलकर क्या कर सकते हैं? तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया और प्रोडक्शन को बनाने की कोशिश की और बच्चों से शेयरिंग की और बच्चे नाटक के बीच में बहुत सारे थॉट उस नाटक के साथ साथ जैसे जैसे नाटक आगे बढ़ता है वो देते हैं। आपको डॉक्यूमेंट we will give extra time to our kids. इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कैरिकुलम की एक समस्या थी, एक इशू था कि मैथमेटिक्स, तो उसको इस प्रोग्राम में हमने काफ़ी शोज किए हैं इसके और बच्चे इसमें समझ में आता है उनको कि कैसे मैथमेटिक्स को उनको पढ़ना चाहिए। ये इंडिया का पहला टीआई प्रोग्राम है जो मैथ सब्जेक्ट को लेकर बनाया गया है। इसमें डांस, ड्रामा, क्लाउनिंग, म्यूजिक, प्रोजेक्शन सबका यूज किया गया है जो मैथ जैसे सब्जेक्ट में भी मनोरंजन ले आता है। Thank you for playing. I am saying reflection. Reflection is very important in this teaching learning methodology because the TI, we can see TI reflection in performances. जैसा कि आपने अभी ये TI प्रोग्राम में देखा, वर्कशॉप के फॉर्मेट में भी इसी तरह से वर्क होता है, उसमें भी बच्चों से बहुत सारा रिफ्लेक्शन ऑन कंटेंट ऑन इश्यूज पे होते हैं। एंड ऑल्सो इन द क्लासरूम में जब हम कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसमें भी बहुत सारा रिफ्लेक्शंस लेते हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं हो रहा है। एजुकेशन सिस्टम में एक चीज नहीं हो रही है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाइगोस्की जो चाइल्ड डेवलपमेंट के बहुत बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर बच्चा कोई चीज आज ग्रुप में करता है तो कल वो अकेले कर सकता है। और ये ग्रुप में लर्निंग का जो पीयर लर्निंग का वाइगोस्की ने बात कही है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी नेशनल कैरिकुलम में बार बार इसको जोर दे रही है इस तरह के काम करने के लिए। एंड जो जोन ऑफ प्रोस्कोल डेवलपमेंट की बात की है कि टीचर कैसे बच्चे की जिंदगी में उसके सब्जेक्ट में चैलेंजेस क्रिएट करके उसकी लर्निंग को डबल, ट्रिपल, मल्टीप्लाई कर सकता है। सो ये दीज आर द टेक्निक्स वी आर यूजिंग। सो आपको ये 3 जगह ये रिफ्लेक्शंस दिखेंगे और रिफ्लेक्शन की बात पॉल फ्रेरे बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने भी कही है। इसी चीज को अगस्तो बोल ने भी अपने काम में थिएटर ऑफ ऑपरेस्ट में यूज किया है। एंड थिएटर एजुकेशन एंड ड्रामा एजुकेशन तो पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन पे ही डिपेंड करता है। विदाउट रिफ्लेक्शन वी कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज ईच चाइल्ड इज यूनिक। एक और चीज प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहता है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन ये कहता है कि यू फोकस ऑन इंडिविजुअल नॉट सब्जेक्ट, बट आवर स्कूल सिस्टम फोकस ऑन सब्जेक्ट नॉट इंडिविजुअल। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। सो ये क्या हो रहा है कि वो एजुकेशन में सब्जेक्ट, एग्जाम, टेक्स्ट बुक एंड दीज आर थिंग इज वेरी इन अपर लेवल। सो जो बच्चे हैं वो बहुत पीछे आ जाते हैं इन द स्कूल सिस्टम। सो हर एक बच्चे इज यूनिक एंड ईच एंड एवरी चाइल्ड हैज एक्सपीरियंस, ईच एंड एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम
Anybody? So हम उसकी resources को how to develop. तो theater in education जैसा मैंने कहा था कि how to think, tools देता है. Tools कि कैसे जीवन में you have to face the, confront the life, you some problems and how to solve this. Because in the life, जैसा मैंने कहा कि group में अगर वो solve कर लेता है problem, तो individually he can do better tomorrow. So ये ideas होने बहुत जरूरी है. और कुछ चीजें बहुत important ingredients हैं जिसको हमारे काम के हैं, जिसको मैं शेयर करना चाहूंगा. This is ये generally होता नहीं है, लोग इस पे बात नहीं करते हैं. If you want to work with children, so you have to one sutra you have to note down if you want. So generally क्या होता है कि लोग स्कूल्स में क्या होता है या कहीं पर भी ये काम होता है, कॉग्निटिव टू इफेक्टिव की तरफ जाते हैं. कॉग्निटिव मींस अंडरस्टैंडिंग पहले एंड कंप्रहेंसिव काइंड ऑफ वर्क स्टार्ट करते हैं, एंड देन इफेक्टिव मतलब फीलिंग लेवल एंड एक्सप्लोरेशन लेवल एंड अदर लेवल. सो यू जस्ट अपोजिट वर्क, ये अपोजिट होता है. अगर इस बात को कोई नहीं समझेगा तो जो एडल्ट लोग हैं वो बच्चों के साथ काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी मटेरियल पे आप काम करें, चाहे स्कूल में करें, चाहे वर्कशॉप्स में करें, चाहे स्कूल के आउट ऑफ स्कूल में करें, इन एनी काइंड ऑफ वर्क. सो द सूत्र इज इफेक्टिव टू कॉग्निटिव जाना है. ये काम नहीं करते स्कूल में या कहीं पर भी. हम लोग सबसे पहले किसी भी मटेरियल के साथ इफेक्टिव होते हैं, यानी कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल चाइल्ड फील करे किसी भी चीज को, एंड लास्ट में अंडरस्टैंडिंग लेवल पे काम करते हैं कि वो अब क्या उसको फीलिंग्स आई और क्या उसके दिमाग में क्या व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग एंड थॉट इज पैदा हुए, एंड देन उसको सम अप करते हैं उसके साथ. सो दिस इज द वन. आप स्कूल के अंदर उल्टा होता है, पहले कॉग्निटिव होता है. इन द थिएटर वर्ल्ड आल्सो, अगर आपको हम एग्जांपल, फॉर द एग्जांपल इफ आई से, अगर मान लीजिए किसी आपको प्ले करना है, सबसे पहले यू रीड द स्क्रिप्ट, यू ट्राई टू गिव देम सम अंडरस्टैंडिंग, एंड देन यू गो सम एक्सरसाइजेज एंड सीन वर्क, एंड देन यू गेट इफेक्टिवनेस ऑफ द मटेरियल. बट हम अगर बच्चों के साथ काम करते हैं, अगर मान लीजिए मुझे शेक्सपियर का भी प्ले करना है या कोई भी कुछ भी करना है, तो हम उसको कैसे करेंगे? हम उसको इफेक्टिव पहले लाएंगे. इफेक्टिव क्या? वी प्ले विद द मटेरियल, व्हाटएवर, जो भी शेक्सपियर के कैरेक्टर्स हैं, सिचुएशंस हैं, थॉट हैं, क्राइम कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उस प्ले के अंदर हम एक्टिंग की बात नहीं करेंगे. वी जस्ट प्ले वी अंडरस्टैंड, प्ले खेलते खेलते एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लोर एंड प्ले थ्रू द एक्सरसाइजेस, थ्रू द ड्रामा कन्वेंशंस, a lot of things. So after that children can understand. And one more technique is working in this section is Augusto Boal and Brecht and drama and education and theater and education is a similar thing, but the technique is the same. They use metaxis. You can write it, you can explore into the Google and other exploration books, and where you can understand, because Plato, जो लोग English literature से होंगे, they knows the Plato का ये idea था. So उसको ब्रेख्त ने कुछ 19वीं शताब्दी में यूज किया, क्योंकि उनके सामने सवाल था, इज द क्वेश्चन कि थिएटर का व्हाट इज द यूज ऑफ थिएटर इन सोसाइटी. सो उन्होंने मेथड फिर इसको क्रिएट किया. तो मेटाक्सिस को यू कैन सर्च इन एंड यू कैन रीड एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेटाक्सिस. इज रियल टू फिक्शन, फिक्शन टू रियल. इन बिटवीन यू प्ले reality to fiction, fiction to reality. So that's why we use this techniques. Brecht used on stage, and Augusto Boal also used in image theater and forum theater and other in his teaching and learning conditions. And one more person is Vygotsky. We are using the maximum Vygotsky theory is in this section. He says dual effect. Dual effect is also the same, similar to the metaxis effect. Real to fiction, fiction to real. That's why we use a lot of images. We stop any image and inquire the image and examine the image. We
we don't play constantly whole play, because there is a no learning. Why there is a no learning? Because there is a no reflection. During the play we need reflection. इस समय अभी क्या सोच रहा है वो रिफ्लेक्ट करना, एंड देन गो टू द नेक्स्ट. दैट ये थिएटर एजुकेशन और ड्रामा एजुकेशन का बहुत मेन जो, इसीलिए इसमें इन रोल एंड आउट ऑफ रोल, टीचर इन रोल में भी इन रोल एंड आउट ऑफ रोल, चिल्ड्रन भी इन रोल एंड आउट ऑफ रोल करके दोनों सिस्टम्स में समझते हैं. इन रोल यानी कि फिक्शन, आउट ऑफ रोल इज अ रियलिटी. सो वी प्ले विद बोथ. As an actor play in role and then वापस come back to in the reality. In ब्रेथ के प्ले में आप देखते हैं कि एक एक्टर रोल लेता है, स्टेज के सामने ही सब कुछ करता है, एवरीबडी कैन सी इट, एंड रोल में जाता है, फिर रोल से बाहर आता है एंड कमेंट इन दैट पर्सन दैट रोल. ये सब ब्रेथ के थ्योरी में आपको पता होगा, कि आपने देखा होगा तो जानते होंगे. बट उसी टेक्निक्स को एलिबरेट करके थिएटर एजुकेशन, ड्रामा इन एजुकेशन में लेते हैं, क्योंकि वी नीड द रिफ्लेक्शन during the play, during the session, during the teaching. So that's why we start the in and out of role. We are using one more thing is a drama convention. We are using strategy. We are using with the planning, and constructivism is very important issue in this section, because constructivism is our Indian जो नेशनल कैरिकुलम है उसका भी एक पर्पस है, उसका एक गोल है कंस्ट्रक्टिविज्म. क्योंकि अब किसी भी मटेरियल को, किसी जो लोग टीचिंग लाइन में है वो ज्यादा इस बात को समझते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म को इसलिए अप्लाई किया गया कि जो सीखना है वो जीवन भर चलेगा, इस कांस्टेंट प्रोसेस. सो लर्निंग इज अ कांस्टेंट प्रोसेस. सो ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, अब पहले क्या होता था ड्रामा एजुकेशन में भी, ये थिएटर एजुकेशन में भी, ये पहले का जो एम एंड ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम किसी सिचुएशन को समझें, बच्चे किसी सिचुएशन को समझें, दैट इज द मेन एम. बट कोशिश होती है कि हाउ वी कैन गिव न्यू मीनिंग. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्या सोचना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे सोचना इंपॉर्टेंट है. ह्यूमन कंडीशंस को समझना इज नॉट इंपॉर्टेंट, बल्कि उसके ऊपर एक नया मीनिंग क्रिएट करना, नए ऑप्शंस क्रिएट करना, ताकि जो फ्यूचर है वो हम उस फ्यूचर को फेस कर पाए न्यू मीनिंग के साथ. अब सिर्फ ये नहीं कि ये सिचुएशन है इसको हमने समझ लिया, नो, व्हाट इज द न्यू मीनिंग. बच्चे इस मीनिंग्स को सोचें और उसको कनेक्ट करें. और ये ही नहीं कि सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढें, वो क्वेश्चंस भी क्रिएट करें बच्चे. स्कूल सिस्टम में ये क्वेश्चन क्रिएट करने का सिस्टम नहीं है. दैट्स व्हाई द थिंकिंग इज डिफरेंट. हमेशा क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश होती है टेक्स्ट बुक में, इधर उधर. टीचर भी वही आंसर पढ़ाता है जो टेक्स्ट बुक में है. तो दिस इज द प्रॉब्लम एक्चुअली लिटिल बिट. तो थिंकिंग डेवलप नहीं होती बच्चों की. सो नेशनल कैरिकुलम इंडिया का भी कोशिश ये कर रहा है कि ग्रुप्स में काम हो, सारे ये जो टेक्निक्स हैं, इन टेक्निक्स को यूज भी किया जाए और अच्छे से काम हो इस पे. हम आगे चलते हैं. आपको एक स्क्रीन शेयर के साथ थोड़ा सा हम हमारा जो प्रोस्पेक्टस है उसके थ्रू हम इस डिटेल में थोड़ी सी ये बात करेंगे कि कैसे हम क्या क्या कोर्स डिटेल है जिसको हमें करना है. 1 minute, I will share. So very quickly we go through this prospectus. So this is this year prospectus. So this is our National School of Drama in Tripura. This is the building, and these are some chapters. I will not stay and waste the time. As you know, who is not familiar with the National School of Drama, so you can understand the National School of Drama is one of the foremost theatre ट्रेनिंग सेंटर. और इसका जो सबसे अच्छा है 3-year कोर्स जो दिल्ली में है. आई एम जस्ट हाईलाइटिंग 1 or 2. इसके 2 परफॉर्मिंग विंग्स हैं. वन इज अ रेपर्टरी एंड वन इज अ थिएटर एजुकेशन कंपनी. एंड सम एक्सटेंशन प्रोग्राम्स हैं जो पूरे देश में चलते हैं. एंड इसके 4 सेंटर हैं जैसा कि आपको पता है. तो दीज आर द इंट्रोडक्शन.
सो हम आते हैं इस पे। This our very important person, yeah. Yes. अगरतला को अगर आप ऐसे ये कब शुरू हुआ, ये 90 ये अगरतला में एक कैंप लगाया गया और ये जस्ट फॉर द जैसे होता है एक्सटेंशन प्रोग्राम का, और वहाँ पे एक कैंप में यहाँ के जो डिपार्टमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन के साथ मिल करके हमने करीब बहुत सारे थिएटर के टीचर्स और थिएटर सब्जेक्ट टीचर्स के साथ वर्कशॉप्स की। तो उनको एक आइडिया आया कि क्यों ना हम यहाँ पे एक स्कूल खोलें जो इसी बात को टीचिंग को ट्रेनिंग दे। सो हमने 9 अगस्त 2012 को ये 1 ईयर कोर्स शुरू हुआ। इसका एक पूरा प्रोस्पेक्टस बना और इसका एक इसके ऊपर बहुत सारी कमेटी ने अपने अपने व्यू दिए और देन ये स्टार्ट हुआ। सो ये हमारे इस समय के अर्जुन देव चरण जी एक्टिंग चेयरमैन है, डॉक्टर अर्जुन देव चरण जी, एंड सुरेश शर्मा जी इज आवर डायरेक्टर इंचार्ज। प्रोफेसर सुरेश शर्मा जी ही इज एक्टर एंड आल्सो डेप्यूटी के भी इंचार्ज हैं और हेड हैं और अच्छे एक्टर हैं, लगातार कांस्टेंट एक्टिंग में भी काम करते हैं और इस समय डायरेक्टर हैं। यू नो द अभिलाष पिल्लई, ये भी साउथ इंडिया से, केरल से हैं और बट प्रोफेसर हैं और इज जीनियस, यंग समय के सबसे अच्छे टीचर एंड प्रोडक्शन और सीखने सिखाने के लिए। तो ही जस्ट इंचार्ज, सेंटर इंचार्ज हैं, इनके गाइडेंस में हम लोग काम करते हैं। दिस इज अबाउट मी, ऑलरेडी नोज। This is the picture. First day we start this our school. So Amal Alana, that time is a chairperson. He is a former Chief Minister Manik Sarkar ji, and that time Anuradha Kapoor ji, that she was a director, and Kirti Jain जो इस प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी इस पूरे कोर्स को बनाने में, ये कीर्ति जैन जी ने पूरी मदद की, मेहनत की। और टीआई जो कंपनी है इन जो स्कूल का है, तो उन्होंने जब वो डायरेक्टर थी तो उन्होंने टीआई कंपनी भी शुरू की थी इनके ही सहयोग से। उस समय बैरी जॉन ने शुरू किया था और मेन वो काम करते थे, लेकिन डायरेक्टर ये थी और इनकी बहुत चाहत थी कि एक स्कूल भी इस तरह 1 ईयर कोर्स खुले। तो इन्होंने अपने लास्ट ईयर जो रिटायरमेंट का है उन्होंने पूरा इस स्कूल को खोलने में लगाया। और आल्सो सुधीर कुलकर्णी जी द फर्स्ट आवर कैंप डायरेक्टर। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा क्योंकि इन्होंने ग्रास रूट लेवल पे कैसे काम करना है स्कूल में त्रिपुरा के अंदर, और क्योंकि ये एक्सटेंशन प्रोग्राम नॉर्थ ईस्ट में पहले से कर रहे थे तो इन्होंने हमें इसको इस्टेब्लिश करने में मदद की। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स, हमने आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन दिस इज द प्रिम्बल। आई वुड लाइक टू read little bit I would like to explain it. With a growing importance of the getting children to classroom and the national international emphasis in the universal education. So what is the international emphasis? Actually जो लोग एजुकेशन सिस्टम में काम कर रहे हैं उनको ये थोड़ा सा पता होगा कि जब हम एजुकेशन सिस्टम में कुछ चीजें ऐसी कि जो उसके हमें इंटरनेशनल लेवल पे गवर्न भी करती हैं। तो जैसे यूनेस्को ने 31st सेंचुरी में लर्निंग के ऊपर 4 पिलर्स दिए जो हर एक देश जो है उसको फॉलो करता भी है। व्हाट इज द 4th पिलर इज लर्निंग टू नो, 1, सेकंड इज लर्निंग टू डू, थर्ड इज लर्निंग टू लिव टुगेदर, एंड द 4th इज लर्निंग टू बी। ये 4 पिलर ऑल ओवर वर्ल्ड में, प्लस अपने देश का कंडीशंस को देखते हुए, जैसे भारत है तो अपना हमारे प्रिम्बल और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ध्यान में रखते हुए एजुकेशन को आगे
रिव्यू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट का अपना एजुकेशन सिस्टम है उसको भी वो कंक्लूड करते हैं। तो ये सब मिलकर के एक नेशनल कैरिकुलम हर देश का बन जाता है। तो इसलिए कि थोड़ा इंटरनेशनल एम्फेसिस भी इस बात पे था कि बच्चे जो हैं जाने क्या हो रहा है, ये सीखने का उनको हक है, करके सीखने का उनको हक है, और साथ में मिलके सीखने का उनको हक है, और ये राइट है बच्चों का। और लर्निंग टू बी, अपने बारे में जानने का भी उनको हक है। तो इससे उनको दूर नहीं किया जाना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में। तो उसको भी इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारा इंटीग्रेशन एजुकेशन के अंदर आता जा रहा है, और ये सब एजुकेशन में जो लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह से इन सब बातों को समझते हैं। मैं जस्ट उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। It is an imperative that we address the multiplicity of the learner and interest and reality of the classroom diversity. जो हमने अभी आपसे बात की कि हर एक बच्चा यूनिक है, उसका कल्चर, क्योंकि बच्चा जब स्कूल में आता है तो अकेला नहीं आता, उसके साथ उसका कल्चर आता है। सो हम उसको इग्नोर कर देते हैं क्लासरूम में। सो वी हैव टू एड्रेस, जैसा हमने कहा कि फोकस बच्चे पे होना चाहिए, ना कि सब्जेक्ट पे। In addition to being inclusive and being moving away from a one size fit for all model, हमारे यहाँ जैसे होता है एक ही चीज सभी के लिए नहीं, हर एक बच्चा लर्नर के तौर पे इज द डिफरेंट। कोई जल्दी सीखता है, कोई देर में सीखता है, कोई विजुअल से सीखता है, कोई भाषा में ही सीख जाता है, कोई करके सीखता है, किसी को एक्स्ट्रा कुछ जरूरत होती है सीखने के लिए। सो वी कैन नॉट ट्रीट सेम। क्लासरूम प्रोसेसेस need to link with the individual learner despite of large number. तो वही जो बात मैं कह रहा था, theater is a useful medium as a classroom resource. Theater is an educational context, can be a lively and enjoyable method of the exploring or learning about the numbers of the other subjects. So ये जो इस पे भी हमने आपको थोड़ा सा पहले ही बता दिया कि थिएटर क्यों इंपॉर्टेंट है और थिएटर की किस टेक्निक्स को हम इंजॉयबल बनाते हैं इनटू द लर्निंग। सो ये इसी के पीछे की बात हम आपको बता चुके हैं। एज अ प्रोसेस ऑफ द कैरिकुलम, इट ऑफर यूनिक एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी एंड ओपनिंग अप द लर्निंग स्पेस टू द पार्टिसिपेंट्स बियॉन्ड द प्रिंटेड टेक्स्ट। जो हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं उसके अलावा भी दुनिया है, उसको समाज से कैसे कनेक्ट करना चाहिए, ये बात करिकुलम भी कहता है। हम सब जानते हैं, और थिएटर एजुकेशन तो एक्सपीरियंस एंड एनवायरनमेंट को कनेक्ट करता ही करता है। Besides being a method, a subject, theater is a both process and form. ये जैसा हमने पहले भी कहा कि स्कूल के अंदर थिएटर एज अ सब्जेक्ट भी है, थिएटर एज अ मेथड भी है, थिएटर एज अ प्रोडक्शन भी है। तो वो सब्जेक्ट के अंदर भी आ जाता है प्रोडक्शन। सो बेसिकली नेशनल कैरिकुलम ने भी या एनसीईआरटी ने भी एज अ सब्जेक्ट और एज अ मेथड दोनों को उन्होंने इसको अपने कैरिकुलम में, अपने नेशनल कैरिकुलम में इसको शामिल किया है कि दोनों तरह से। और ये भी कहा है, मतलब रिकमेंडेशंस हैं, लोग इसको फॉलो नहीं करते। रिकमेंडेशंस यही है कि जैसे सारे सब्जेक्ट्स हैं वैसे म्यूजिक, डांस, ड्रामा एंड विजुअल आर्ट भी होने चाहिए। इसके ऊपर अभी आपने सीबीएसई बोर्ड ने एक आर्ट इंटीग्रेशन शुरू किया है, उसमें भी यही बातें कही जा रही हैं कि सब्जेक्ट को और आर्ट फॉर्म को कैसे ब्लेंड किया जाए, कैसे एक साथ रखा जाए। तो सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है और आर्ट का जो ऑब्जेक्टिव है, दोनों को मिला करके आर्ट इंटीग्रेशन बना है, जिसमें म्यूजिक है, डांस है, ये सब चारों जो और भी विजुअल आर्ट है, ड्रामा है, तो इनको कैसे सब्जेक्ट के जो टेक्स्ट बुक है उसके साथ ब्लेंड किया जाए, मैशअप किया जाए, ताकि दोनों का मजा बच्चे ले पाए और दोनों में लर्निंग उनकी ज्यादा होगी। क्योंकि आर्ट फॉर्म लर्निंग को इनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है, टेक्स्ट बुक के अलावा भी किसी दूसरी दुनिया तक ले जाता है। तो ये गवर्नमेंट भी कर रही है और अच्छा इनिशिएटिव लिया है और उसको लागू कर रहे हैं। अभी तो कोविड-19 की वजह से नहीं हो रहा है, लेकिन वो जल्दी ही वो सब चीजें भी धीरे धीरे आएंगी। तो ये जो प्रिम्बल है, ये आप कभी हमारे वेबसाइट पे, ये प्रोस्पेक्टस या वेबसाइट के अंदर और भी बहुत सारी जानकारियां हैं, तो आप इस पे पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके पीछे जो हमारा मकसद है उसको हमने पहले भी आपको जो लिखा नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब आते हैं
ये संजय गांगुली जी हैं जो थिएटर ऑफ ओप्रेस्ड इंडिया में कैसे काम कर रहे हैं। जो थिएटर ऑफ ओप्रेस्ड है, जैसे कि वो आप अगस्तो बॉल का काम है, पॉल फ्रेरे के एजुकेशनल जो उनकी फिलॉसफी है उनको मिला के है, लेकिन ये इंडिया में विवेकानंद की फिलॉसफी के साथ मिला करके कैसे काम कर रहे हैं कि विवेकानंद ने एक इंटरनल एक इंसान को कैसे रिसोर्सेस को कैसे डेवलप करना चाहिए, ये एजुकेशन में जो उनकी फिलॉसफी है। सो चूंकि विवेकानंद थिएटर से नहीं, लेकिन इन्होंने थिएटर को उसको कैसे थिएटर में लाएं और वेस्ट बंगाल में इस इंटीरियर जगहों पे ये काम कर रहे हैं। तो ये हमारे स्कूल में हर साल आते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है थिएटर ऑफ ओप्रेस्ड। थिएटर ऑफ ओप्रेस्ड, थिएटर इन एजुकेशन एंड ड्रामा इन एजुकेशन, ये 3 पिलर हैं। आजकल आप सुनते होंगे अप्लाइड थिएटर, अप्लाइड ड्रामा। सो एक्चुअली बेसिक ये 3 है और इसके जो इंग्रेडिएंट्स आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, बार बार हम फोकस कर रहा हूँ कि कैसे वर्क करता है, वो इसका मेन टूल है। सो ये जो त्रिपुरा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर आप इसको कभी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो ये मैं थोड़ा सा इसमें शेयर करूंगा कि इसमें थिएटर जो हमारे पास जो ग्रेजुएट आते हैं उनको पहले थिएटर की नॉलेज देना, थिएटर हिस्ट्री, स्टेज क्राफ्ट, एक्टिंग, ये सब जो एक एरिया है, क्योंकि बहुत सारे टीचर आते हैं जो दे डोंट नो द थिएटर। सो पहले हमें एक फाउंडेशन ऑफ थिएटर देना होता है। एंड जो थिएटर बैकग्राउंड के लोग आते हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं जानते हैं, तो उनको चाइल्ड डेवलपमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट की जो थ्योरीज हैं, जो बच्चों के साथ काम करने के बहुत सारे अप्रोचेस हैं, वो उनको मिलता है इससे। इसके अलावा क्लासरूम में ड्रामा और थिएटर कैसे बच्चों के साथ हो, एजुकेशन में कैसे काम हो, ये सब बातें उसमें आती हैं। तो 3 जगहों से इसको क्लब किया गया है और तब ये और फील्ड बेस्ड ट्रेनिंग भी हमारी होती है। जो ये जैसे वर्कशॉप्स हमारे स्कूल में जाकर के करते हैं, स्कूल में जाकर पढ़ाते भी हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। सो हमें ये पता चलता है कि वो कितना सीख पाए हैं, कितना वो एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं स्कूल के अंदर। सो एम और ऑब्जेक्टिव्स जो आप ये देख रहे हैं कि स्कूल के लिए थिएटर टीचर कैसे बनाया जाए, तो स्कूल के लिए बनाने के लिए हमें सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है उसको भी समझाना होता है कि हमारा भारत में एजुकेशन कैसा है, स्टेट का एजुकेशन सिस्टम क्या है, सेंट्रल का एजुकेशन सिस्टम क्या है, किस तरह से टीचिंग लर्निंग के अप्रोचेस को गवर्नमेंट देख रही है और हम थिएटर के लोग कैसे उसको देखें, ये है। इसके साथ साथ एक है थिएटर टीआई प्रोफेशनल आर्टिस्ट। चूंकि 25 सालों से एक रेपेटरी कंपनी हमारी काम करती रही है, तो उसके पास बहुत सारे एक्सप्लोरेशन हैं काम के, एज एन एक्टर, एज एन टीचर। सो उन कामों को भी हमने इनमें शामिल किया हुआ है इस टीचिंग में, उसकी प्रैक्टिसेस को भी हम यहाँ कराते हैं। तो जैसा हमने कहा कि लर्न फाउंडेशन फंडामेंटल ऑफ द थिएटर, टीच थिएटर एज एलिमेंट्री स्कूल लेवल। स्कूल के अंदर एलिमेंट्री लेवल पे हम थिएटर को कैसे टीच करें, एज एन सब्जेक्ट, एज एन मेथड, बोथ। ये हमें अभी आपको मेथड वाले में थोड़ा सा और क्लियर करूंगा कि व्हाट इज द मेथड। क्रिएट थिएटर विथ चिल्ड्रन इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, यानी कि इन द स्कूल कॉन्टेक्स्ट एंड द आउट ऑफ स्कूल कॉन्टेक्स्ट। हम बहुत सारे एनजीओज या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कैसे, जो स्कूल में नहीं जाते बच्चे उनके साथ कैसे करें, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते उनके साथ आप काम कैसे करेंगे, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उनके साथ आप काम कैसे करेंगे, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हैं बच्चे, तो उनके साथ आप एक इस वर्क को कैसे क्रिएट करेंगे। Be familiar with the characteristics of the children and the multiplicities of the childhood. ये हमारे लिए बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि सारा काम हमारा इसी पे बेस करता है कि बच्चों का चाइल्डहुड और उनके चाइल्डहुड के नेचर्स क्या हैं, क्योंकि सारा काम इसी पे बेस करता है। क्योंकि हम बच्चों के आइडियाज को डेवलप करने के लिए ये सारी टेक्निक यूज करते हैं, क्योंकि वो अपने रिसोर्सेज को डेवलप कर पाए, ना कि हम उसको कोई ज्ञान या कोई नॉलेज, ऐसा नहीं, वो अपनी स्किल को इंप्रूव करे फॉर द लाइफ, और एज एन आर्टिस्ट या एज एन ह्यूमन बीइंग, बोथ। यूज थिएटर एज अ लर्निंग रिसोर्स इन विलन पार्ट ऑफ द करिकुलम कंटेंट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। यहाँ पे हम लोग ये इसलिए रखा है कि इसके जो एजुकेशनल टूल हैं, जो ये टूल है, ये जो
थिएटर एज अ पैडागोजी कैसे हम यूज करेंगे लर्निंग के लिए, कोई भी चीज सिखानी हो हमें। सो कैरिकुलम में बहुत सारे विषय हैं, जैसे लैंग्वेज, साइंस, मैथ एंड हिस्ट्री, वट एवर, लॉट ऑफ सब्जेक्ट, स्कूल सब्जेक्ट इज। सो उनकी अपनी पैडागोजी है, बट जब वो ड्रामा में आकर के वर्क करती है तो कैसे वर्क करेगी, उसको कैसे उस एम को और ऑब्जेक्टिव को एज अ ड्रामा टीचर और अपने टूल्स से हम कैसे उसको एनहेंस करेंगे, ये क्या क्या टेक्निक यूज करेंगे, और उस लर्निंग को यूजफुल, फ्रूटफुल बनाने के लिए, ताकि बच्चा न्यू मीनिंग क्रिएट करे। अभी जो स्कूल्स में हो रहा है वो ये है कि इंफॉर्मेशंस हैं, इंफॉर्मेशंस को लिख देते हैं बच्चे याद करके, दैट्स ओके, बट हम यहाँ स्टूडेंट्स को ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि इंफॉर्मेशन है जो एक फिगरेटिव नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है, दूसरा उस नॉलेज को इंस्टीट्यूटिव नॉलेज बनाना है, यानी कि उसको सिचुएशनल में कहाँ यूज होता है वो उसमें लाना है। एंड देन थर्ड इज क्रिएटिव नॉलेज, ये भी बच्चों के लिए जरूरी है, क्योंकि वो नया इन्वेंट कैसे करेगा, उस नॉलेज को न्यू पर्सपेक्टिव से कैसे देख पाएगा, क्रिएट करेगा। तो ये हमारी जो कोशिश होती है ये कि सब्जेक्ट को कैसे डील करना है, ड्रामा एजुकेशन, थिएटर एजुकेशन कैसे इसको डील करेगा, या ड्रामा टीचर कैसे डील करेगा, तो ये बच्चों के लिए फ्रूटफुल है इन द स्कूल। फिर परफॉर्मेंस फॉर द चिल्ड्रन, दिस इज डिफरेंट, एज एन एक्टर वर्क है, एज अ चाइल्ड। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है कि एडल्ट परफॉर्मिंग और चिल्ड्रन में एज अ चाइल्ड आप कैसे परफॉर्म करेंगे, एज अ चाइल्ड, जो ग्रिप्स थिएटर की फिलोसफी है उसको भी हम यहाँ प्ले करते हैं, एंड अदर्स प्ले में भी बच्चों के लिए बच्चे बन के कैसे हम परफॉर्म करें, इसकी सारी टेक्निक सिखाई जाती है यहाँ, और इसके ऊपर भी एम्फेसिस होता है। यूज एलिमेंट ऑफ थिएटर, लोकल फोक ट्रेडिशंस एंड चाइल्डहुड, ये भी एक एरिया है जिसमें थोड़ा कम हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा उनको, स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप अपने रीजन में जाइए, वहां बहुत सारे फोक एलिमेंट्स हैं, उनको क्लासरूम में टेक्स्ट बुक के साथ आप कैसे लाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम स्कूल में होना चाहिए कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, आसपास बच्चे इतने फोक फॉर्म और ट्रेडिशनल फॉर्म, रिचुअल्स, ये सारी चीजें देखते हैं, लेकिन उसको टीचिंग में कैसे लाएं। कुछ टीचर्स हमने साउथ में देखे हैं कि करते हैं, कोशिश करते हैं, तो उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा, समझा कि वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कि सब्जेक्ट में अपनी ट्रेडिशंस को लाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक बहुत एरिया हमारा अभी, ये स्टूडेंट्स को जाके अपनी रीजंस में करना है, क्योंकि हम यहाँ उनको उनके रीजन की चीज नहीं सिखा सकते, उनको एक्सप्लोर करना है कि क्लासरूम में वो चीज कैसे आए, क्योंकि बच्चे आसपास वो फोक टेल, वो लोरी, वो ट्रेडिशनल फॉर्म रोज देखते हैं, तो दे कैन अंडरस्टैंड अदर कॉन्सेप्ट थ्रू दिस बेटर। वर्क विद द डिफरेंटली एबल, जिनको दिव्यांग कहते हैं, उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दी जाती है, क्योंकि जब ये कोर्स 2 साल का होगा तब हम इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। अभी हम छोटा सा उनको एक्सरसाइज के थ्रू छोड़ते हैं, क्योंकि डिफरेंट एबल में हम स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि बच्चों की जो एबिलिटी है, यानी कि अगर वो ब्लाइंड बच्चा है तो उसकी क्या एबिलिटी है, उसके ऊपर काम कीजिए, ना कि डिसेबिलिटी पे काम कीजिए उसके। ऐसे ही डम एंड डफ हैं, ऐसे ही मल्टीपल चैलेंजेस वाले बच्चे भी हैं, तो उनकी जो रिसोर्सेज में जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ में ड्रामा क्या मदद कर सकता है, वी हैव टू थिंक अबाउट इट। तो स्टूडेंट को 1-2 एक्सरसाइज के थ्रू इसको सोचने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स और फिलोसफी काम कर सकती है उनके साथ, जो नॉर्मल बच्चों से अलग हैं, तो हो सकता है काम। अगर कोई बच्चे, कई बार स्टूडेंट चाहते हैं कि हम उनके साथ काम करें, तो हम उनको इक्विप्ड कर देते हैं कि इस तरह से आप उस पर कैसे काम करेंगे और कैसे रिसर्च करेंगे। वर्क विद द टीचर इन वर्कशॉप सिचुएशन टू प्रॉम यूज ऑफ थिएटर इन द क्लासरूम। टीचर ट्रेनिंग्स के बहुत सारे और भी काम होते हैं, या टीचर्स के साथ जब हम काम करते हैं तो उसको भी हम एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे क्लासरूम में काम किया जाए। वर्क विद द टीचर्स इन द वर्कशॉप सिचुएशन टू प्रॉम द सेम थिंग इज work with the teacher, with children. They was raw. उनको हमें बच्चों तक लाने के लिए एक वर्कशॉप वो कैसे फैसिलिटेट करेंगे, प्लान करेंगे और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसकी डिजाइन कैसे होगी वर्कशॉप की। तो TI कंपनी 25 सालों से वहाँ काम करती रही है, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ एक मेथड डेवलप किया है वर्कशॉप का, 1 मंथ वर्कशॉप का, जिसके अंदर कुछ इंटीग्रेशंस एंड सेंसिटिविटी को, बच्चों की आसपास की सेंसिटिविटी को डेवलप करने के लिए उसमें थीम होती है,
सेल्फ की, बच्चों से जुड़े हुए सेल्फ, फैमिली एंड सोसाइटी एंड एजुकेशंस की। तो उन थीम्स को थिएटर के अलग अलग ड्रामा कन्वेंशन के थ्रू उस वर्कशॉप में डिजाइन करना होता है डे बाय डे। तो वो टेक्निक हम यहाँ सिखाते हैं उनको, ताकि वो किसी भी तरह की वर्कशॉप को वो ह्यूमन जो बच्चे हैं वो जो उनके साथ कैसे काम करें वर्कशॉप कंडीशंस में, वहाँ कितना ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्शंस उनसे ले सकते हैं। जितना रिफ्लेक्शंस लेंगे उतनी ज़्यादा बच्चे की लर्निंग होगी। बी एलिजिबल फॉर द हायर स्टडी। जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अप्लाइड थिएटर या फॉरेन में जाकर के स्टडी करते हैं, तो उनका एक बेस 1 साल में तैयार हो जाता है इन एजुकेशनल थिएटर फॉर द अप्लाइड थिएटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक हम वाइड स्केल की स्किल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो किसी भी दिशा में, मल्टीपल कैरियर की दिशा में वो जा सकते हैं। वो फिल्म की तरफ जा सकते हैं, वो किसी जॉब की तरफ जा सकते हैं, सोशल वर्क की तरफ जा सकते हैं, टीचिंग की तरफ। टीचिंग में तो मेन ही है, क्योंकि टीचिंग और फैसिलिटेशन टूल वो समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, तो कैसे वो वर्क करेंगे ये उनको अच्छे से पता होता है। ये हमारे जो स्कूल इस साल से 6000 स्कॉलरशिप है। 8 बजे से लेकर के 6:30 8 बजे तक ट्रेनिंग होती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड थिएटर, इनको तीनों को अटेम्प्ट टू इंटरफेस बिटवीन देम, हम तीनों को ब्लेंड करने की यहाँ कोशिश करते हैं। डिफरेंट अप्रोचेस, डाइवर्स, हमारे पास मतलब डाइवर्स जितनी भी तरह की प्रैक्टिसेस इन द वर्ल्ड में हैं, हम ट्राई टू गिव देम, चाहे वो इंडिया की हो चाहे बाहर की हो, एटलीस्ट स्टूडेंट को सारे तरह के एक्सपोजर मिले, एंड देन पास आउट होने के बाद वो सोचे कि उसको किस मेथड से काम करना, या अपनी कोई नई फिलोसफी क्रिएट करनी है अपने रीजन में जाकर के। ये हमारा पर्पस होता है कि वो सिर्फ कॉपी ना करे किसी चीज की, अपने टेक्निक्स को सीखे और एक्सप्लोर करे अपने ढंग से। हिंदी और इंग्लिश जो लोग अगर कभी अप्लाई करेंगे तो उनको पता हो कि हिंदी इंग्लिश एक वर्केबल हिंदी इंग्लिश वी यूज। एंड वन मोर थिंग, यहाँ जो टीचिंग का जो मेथड है, जैसे थियरी भी हम पढ़ाते हैं तो वो आर्टिकल बेस्ड है, वो रीडिंग एंड आपस में वो ग्रुप में लर्निंग करते हैं। वन वे लेक्चर, वी अवॉइड लेक्चर्स में, बहुत कम है लेक्चर। ग्रुप वर्क भी हमको ज्यादा से ज्यादा इसलिए सिखाते हैं क्योंकि यही चीज वो बच्चों के साथ भी करें। ग्रुप में ज्यादा वर्क करवाते हैं उनको और एक्सप्लोर ज्यादा करवाते हैं। थिएटर, फिल्म, ये सब देखना, वीडियोग्राफी, वीडियो, जो भी पुराने काम हैं, नए काम हैं, बाहर ऑब्जर्वेशन बच्चों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल में ऑब्जर्वेशन, और स्कूल में जाकर के काम करना। क्योंकि जब वो स्कूल में जाते हैं तो वो देखते हैं तो चारों तरफ डेस्क एंड वो कैसे है वहाँ पे ड्रामा की क्लासेस कैसे क्रिएट करेंगे। देन वी एक्सप्लोर, वो उनको फिर धीरे धीरे समझ में आता है। यस, जैसे बहुत सारी चीजें ऑनलाइन पे भी हो सकती हैं, तो बहुत सारी चीजें डेस्क वाली एनवायरनमेंट में भी ड्रामा को हम क्रिएट कर सकते हैं, और कभी हमें एम्प्टी स्पेस की भी जरूरत हो सकती है। तो इन तीनों कंडीशंस में बच्चों इनको हम ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हमारे बायलॉज हैं जो आप देख सकते हैं। हाँ, जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको मैं बताता हूँ वेरी क्विकली। फाउंडेशन थिएटर, एक्टिंग एंड डिजाइन प्रैक्टिसेस, चाइल्ड डेवलपमेंट, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड चाइल्डहुड, theater for children, drama and education, performances, workshops with children and viva होता है इनका। So this is our faculty जो है नेशनल स्कूल ड्रामा, और बाहर से विदेशों से भी आते हैं, लोकल लोग भी होते हैं। तो फैकल्टी इज दिल्ली यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड या एकेडमिक्स बैकग्राउंड के लोग भी आके टीचिंग करते हैं, गुरु शिष्य परंपरा के लोग भी आके टीच करते हैं। कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि जो एक्सप्लोर करते हैं हमारे काम को। जस्ट ए मिनट। इसमें जो फाउंडेशन इन थिएटर है वो जल्दी से मैं बता दूं, हिस्ट्री और डिजाइन जैसा कि स्कूल में पढ़ाया जाता है, किसी भी ड्रामा स्कूल में एंड यूनिवर्सिटीज में। वाई, ये क्यों जानना जरूरी है एक ड्रामा टीचर को? क्योंकि उसको ये सारे फिलॉसफी, जो प्रैक्टिशनर हैं, जो अप्रोचेस हैं, जो डेवलपमेंट है थिएटर का, अगर वो मान लीजिए ये सब चीजें नहीं पढ़ रहा है तो वो नहीं जान पाएगा कि
ब्रेक्ट ने किस तरह का थिएटर किया, आर्थो ने किस तरह का किया, ग्रोटोवस्की ने क्या किया, स्टोलस्की ने क्या दिया, ये सब चीजें उसको नहीं पता होंगी। और उसका यूज कैसे बच्चों के काम में करना है, या डिजाइन और स्पेस में या एक्टिंग में। तो इनका यूज एक टीचर का बैकग्राउंड तैयार होता है, क्योंकि टीचर को जब हम तैयार करते हैं तो तीन चीजों पे ज्यादा फोकस होती है। एक है उसका एटीट्यूड, सेकंड है नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। तो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट वाला जो एरिया है वो इसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि ड्रामा जो है, थिएटर क्या है, वी हैव टू अंडरस्टैंड। एंड थर्ड इज टेक्निक ऑफ द टीचिंग, जिसके ऊपर और भी हम बात करेंगे। एक्टिंग एंड डिजाइन, यू नो, ड्रामा स्कूल्स में एक बेसिक ट्रेनिंग सिस्टम होता है जिसमें हम आपको एक्टिंग की बहुत सारी चीजें बताते हैं। थिएटर गेम्स होते हैं, सीन वर्क होते हैं, म्यूजिक, सीनिक डिजाइन, कॉस्ट्यूम डिजाइन, लाइट डिजाइन, मेकअप, माइम, क्लाउनिंग, एक्रोबेटिक, ये जो तैयारी होती है एक्टर एंड वी कैन से इज एक्टर प्रिपरेशन। एंड एक थिएटर पर्सन को ये सब चीजें जाननी जरूरी है। तो ये जो ट्रेनिंग है, ये जो दो चीजें हैं जो टीचिंग बैकग्राउंड से आते हैं, दे डोंट नो द थिएटर, सो उनको ट्रेन करने के लिए ये ज्यादा जरूरी है। जो थिएटर वर्ल्ड से आते हैं वो शायद वो ट्रेनिंग जो है वो लेके आते हैं, तो उनके लिए रिपीटिशंस भी है, बट ये रिपीटिशंस फिर हम उनको चेंज करते हैं थ्रू द आईज ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों के लिए इसको कैसे यूज करना है, इसके ऊपर फोकस करना होता है। देयर इज सम डिस्टर्बेंस, somebody is doing। हाँ, सो जो टीचर आते हैं वो शायद अगर रेगुलर टीचर हैं तो वो चाइल्ड डेवलपमेंट जानते हैं, पर थिएटर के लोग चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं जानते हैं। सो जो बच्चों की फिजिकल, लैंग्वेज, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल से कर पाते हैं। एंड जो चाइल्ड डेवलपमेंट में कुछ ऐसे टीचिंग लर्निंग टूल्स, जो टीचिंग लर्निंग फिलोसफीज हैं, जो वाइगोव्स्की की फिलोसफी है, जो गार्डनर की फिलोसफी है, जो ब्लूम की फिलोसफी है, बहुत सारी, जो बच्चों को एकेडमिक्स में कैसे डेवलप करें, तो उन सबको भी हम सीखते हैं। क्योंकि हमें स्कूल के अंदर अगर काम करना है तो हमें टीचर कैसे सीखा है उस चीज को भी हमें ध्यान रखना होगा। तो हम इसकी प्रैक्टिसेस उनको करवाते हैं। इसके बाद आता है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड चाइल्डहुड। ये बहुत ही शॉर्ट एक इंट्रोडक्शन है कि आजादी के बाद, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, हमारा देश जो कॉन्स्टिट्यूशन जब आया उसके बाद से हमारे देश में किस तरह के इश्यूज हैं, किस तरह के डिस्ट्रैक्शंस हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको रीड करना। तो हमारा जो इंडियन सोशियो कल्चर और इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है उसको समझना, हमारा जो ट्रेडिशन है भारत का उसको समझना, बच्चों के लिटरेचर को समझना, फोक हो या मॉडर्न हो, इसके ऊपर बहुत काम होता है। थ्रू द चिल्ड्रन पर्सपेक्टिव समझना, चिल्ड्रन, स्कूल एंड सोसाइटी, जो डिसेबिलिटी, इंक्लूजन, एक्सक्लूजन बहुत सारे हम सुनते हैं, इसके ऊपर उनको फोकस दिलाते हैं। कहीं वो बाय द वे स्कूल के सिस्टम में काम करें, कहीं वो जस्टिस के बीच में वो देख पाएं हमारे टीचर्स, ड्रामा टीचर्स स्पेशली। मीडिया, सोसाइटी एंड रोल ऑफ द पेरेंट्स आजकल बहुत जरूरी है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। बच्चा, ग्रोइंग चिल्ड्रन, जो बच्चा जो टेक्नोलॉजी के साथ बड़ा हो रहा है, तो ये भी हमें आज के समय में समझना जरूरी है। ग्लोबलाइजेशन, एज यू नो, सभी लोग जानते हैं। चिल्ड्रन, डाइवर्स सोशल कॉन्टेक्स्ट, जो हमने पहले भी कहा कि हर एक बच्चे की अपनी फैमिली है, कल्चर है, तो वो आता है। लेकिन हमें ये भी है कि लॉ एंड इंटरवेंशंस क्या हैं, बच्चों के राइट्स क्या हैं, इन सब चीजों को टीचर को जानना जरूरी है कि यूनिसेफ क्या राइट्स है, इंडिया में क्या राइट्स दिए गए हैं बच्चों को। जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट में क्या कहा गया है बच्चों के लिए, उसमें किस तरह के लर्निंग टीचिंग को लेकर के किस तरह के गवर्नमेंट ने कुछ प्रिकॉशंस रखे हैं, तो उसको ध्यान देने की जरूरत है। वो सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। कल्चरल स्टीरियोटाइप्स, स्टिग्मा, जो इश्यूज हैं जेंडर्स, और आजकल तो बहुत सारे इश्यूज जेंडर्स के ऊपर या जस्टिस के ऊपर हैं, या कोई किसी के राइट्स के बारे में, ये सब जो नए नए जो डेवलपमेंट हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अब सिंपल सा उदाहरण मैं दूंगा कि ट्रांसजेंडर की बात आती है, तो बच्चों को अब मेल फीमेल कहने की बात नहीं है। तो पहले हम कहते थे कि हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने कहा हेलो एवरीवन। व्हाई? क्योंकि अब उनको जो ट्रांसजेंडर हैं उनको भी कैसे हम मेन स्ट्रीम में लाएंगे और कैसे उनको हम स्पेस देंगे,
तो अगर हम बच्चों को नहीं बताएंगे, अगर टीचर को नहीं पता होगा तो वो ट्रेडिशनल और बायस्ड हो जाएगा इन सब चीजों को लेकर के। लेकिन अगर उसको पता होगा तो अब जो सोसाइटी है उनकी भी राइट्स हैं, तो कैसे क्लासरूम में, कैसे इन सोसाइटी उनको भी हम शामिल करें, स्पेस दें एंड उनको भी रिस्पेक्ट दें। सो दिस इज जो जितने भी अपग्रेड हैं जो आज के समय में हो रहे हैं, उससे अवेयर होना टीचर को बहुत जरूरी है। अदरवाइज वो कोई मिस्टेक कर सकता है इनटू द क्लासरूम, और कोई न्यूट्रल हो और सही जस्टिस कर पाए बच्चों के साथ भी, सो रिस्पेक्ट भी दे पाए। तो अब ये अगला अगस्तो बोल के काम को समझना जरूरी है। पार्टिसिपेटरी थिएटर जो हमने टीआई प्रोग्राम्स की बात की, जो यूके में जो शुरू हुआ, उसकी प्रैक्टिसेस क्या है, और यूरोप में और भी, जैसे इंग्लैंड है तो ऑस्ट्रेलिया है, तो यूएसए में किस तरह की प्रैक्टिसेस हैं, इंडिया में किस तरह की इसकी प्रैक्टिसेस, क्योंकि उसमें बहुत पावरफुल एक्टिंग की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि आप स्कूल में जाते हैं, वहाँ ऑडिटोरियम नहीं है, आप क्लासरूम में परफॉर्म करते हैं, या आप ऐसी स्पेस में परफॉर्म करते हैं जहाँ कोई सपोर्ट नहीं है। सो एक्टर को बहुत पावरफुल होना होता है, क्योंकि किसी भी स्पेस में आपको परफॉर्म करना पड़ सकता है, और विद वेरी यंग ऑडियंस इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्टिंग फॉर द एडल्ट, क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम है, साइबरनेटिक सिस्टम ऑफ एक्टिंग। इसके बारे में मैं जरा सा एक चीज बताऊंगा, क्योंकि एक नई रिसर्च हुई, आप कोई साउथ के ही हैं, वो इंडिया के भी हैं, विदेशों में भी, मिरर न्यूरॉन्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, यू कैन फाइंड आउट इन गूगल, मिरर न्यूरॉन्स। इसमें कि जो परफॉर्मेंस आप सामने देख रहे हैं, सेम वैसे ही कुछ आपके ब्रेन में भी सेम तरह का, अगर मान लीजिए एक्टिंग में जितना भी एनर्जी लग रही है और परफॉर्म कर रहा है, तो उसके ब्रेन में जिस तरह के सेल इनलाइटन होंगे या एक्टिव होंगे, ऑडियंस के अंदर भी वही सेल इनएक्टिव होंगे। ये प्रूफ कर दिया है उन्होंने अभी। और एम्पैथी सेम क्रिएट होती है, ये अब जाकर के रिसर्च में क्रिएट किया है, जबकि हमारे नाट्यशास्त्र में बहुत पहले इन सब चीजों को बोला गया था, लेकिन साइंटिफिकली वो प्रूफ नहीं था, लेकिन अभी ये प्रूफ किया है। तो साइबरनेटिक सिस्टम में क्या है कि बहुत सारी स्पीच एक्ट की थ्योरी है, इसमें बहुत सारे रिसर्च की थ्योरी है कि बच्चे की जो एक्टर है वो इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरह की टेक्निक्स का यूज करते हुए परफॉर्म करे। क्योंकि मान लीजिए कि कई एक्टर होते हैं ऐसे कि नहीं, जब तक मुझे फीलिंग्स नहीं होगी आई कैन नॉट प्ले, बट इन द फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन इन स्कूल देयर इज अ नो मूड, आपको करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऑडिटोरियम्स में तो आप शाम को बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन स्कूल के अंदर शोर है, इधर है उधर डिस्टरबेंस है, एंड एक्टर को कंसंट्रेशन के साथ वी हैव टू डू इट। सो इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों प्रैक्टिसेस इसमें जरूरी है। तो इसमें हम कोशिश करते हैं स्ट्राविंस्की को थोड़ा सा पढ़ाते हैं, क्योंकि किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी कैरेक्टर को स्कोर कैसे करना है। एंड द सेकंड इज कुछ 10 थिएटर के जो स्टाइल हैं उसको बताते हैं, जो ग्रीक का है, या जो शेक्सपियरियन है, जो इंडियन संस्कृत ड्रामा है, पारसी है, मॉडर्न है, तो इनकी स्टाइल क्या, रियलिस्टिक क्या है, और इस तरह की जो स्टाइल्स बहुत सारे स्टेज पे परफॉर्म होते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए सब मिक्स स्टाइल चाहिए, कोई एक स्टाइल से उनको मजा नहीं आएगा, रियलिस्टिक तो बिल्कुल ही नहीं पसंद करते, बहुत सारा उनको ड्रामेटिक चीजें चाहिए, हर तरह का। तो क्या क्या हमारे जो हिस्ट्री में जो टेक्निक्स हैं उन सबको हमें परफॉर्मेंस में लाना है, तो वो है। फिर इसके अलावा लेबॉन की एक थ्योरी है जो उनकी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी थ्योरी है। आई विल रिकमेंड यू वन ऐप इफ यू वांट टू नोट डाउन, और उसको कभी आप बच्चों के लिए दे सकते हैं, डांस फॉर द एजुकेशन के लिए है। ऐप का नाम है डांस मेकर। ये एंड्रॉइड पे भी और एप्पल आईफोन पे भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें लेसन्स अपने आप बन जाते हैं और बच्चे उसको अपने आप खेल सकते हैं, तो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। याद आया इसलिए मैंने बता दिया कि भूल जाऊंगा मैं। सो दिस इज गिफ्ट फॉर यू। डेवलपिंग द थिएटर एंड वर्कशॉप विद चिल्ड्रन, जैसा हमने आपको बताया कि ये काम कि कितने तरह से हम बच्चों को डेवलप कर सकते, कितनी तरह की थ्योरीज और अप्रोचेस हैं जिससे हम इनको डेवलप करते हैं, और बच्चों के साथ डिवाइस कैसे प्ले करें। ये एक यूनिक टेक्निक है जो टीआई कंपनी भी संडे क्लब में काम करती है। रिहर्सल टेक्निक, जो डायरेक्टर रिहर्सल टेक्निक यूज करता है, उसको हम कैसे बच्चों की ग्रोथ में, एज एन आर्टिस्टिक ग्रोथ, एज ए क्रिएटिव ग्रोथ के लिए यूज कैसे करें, तो उन टेक्निक्स को भी इसमें लाया जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज ड्रामा इन एजुकेशन। ड्रामा इन एजुकेशन को एज एन सब्जेक्ट और मेथड दोनों रूप में एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है, बट ड्रामा इन एजुकेशन एक खास किस्म का फॉर्म भी है जिसको हम प्रोसेस ड्रामा के नाम से जानते हैं। दिस इज अ वेरी डिफरेंट फॉर्म।
सो बट जो ड्रामा एजुकेशन में यूज किया जाता है वो ड्रामा एज ए पैडागोजी कैसे यूज करनी है ये बात आती है। तो कुछ ड्रामा के पायनियर हैं, डोरोथी हिचकॉक, पीटर स्लेट, हमारे यहाँ बहुत सारे, टैगोर ने बहुत सारे स्कूल पे काम किया है, गिजुभाई हैं, देवी प्रसाद, और इस तरह के बहुत सारे फिलोसोफर भी रहे हैं। तो इन सब लोगों ने जो भी बच्चों के लिए, या कृष्णमूर्ति जो साउथ में भी बहुत सारे, पांडिचेरी और आदि रंग क्या आदि है ऐसा, इन लोगों ने बहुत सारा कृष्णमूर्ति के काम को भी बच्चों के साथ एक्सप्लोर किया है। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे देश में बच्चों की ग्रोथ में कैसे आप काम कर सकते हैं, इसके भले ही किसी ने ड्रामा के साथ ना किया हो, लेकिन अदर एक्टिविटीज के साथ, अदर आर्ट फॉर्म के साथ भी क्रिएट किया है। नाउ हियर इज सम जो हिस्ट्री में जो कुछ ड्रामा को क्लासरूम में अप्रोच किया गया, उसकी टेक्निक्स के बारे में और उसकी फिलोसफी एंड प्रैक्टिसेस के बारे में हम वी आर गोइंग टू टेल यू। क्रिएटिव ड्रामा इंग्लैंड में पीटर स्लेट जो चाइल्ड ड्रामा के हैं, इसको भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, बट इज अ डिफरेंट अप्रोच, लिटिल बिट डिफरेंट, बट इज द सिमिलर अप्रोचेस। क्रिएटिव ड्रामा यूएसए में भी शुरू हुआ और इंग्लैंड में भी क्रिएटिव ड्रामा का, इंडिया में भी क्रिएटिव ड्रामा की प्रैक्टिसेस बहुत अच्छे से होती है। सो इसमें बच्चे की सेल्फ ग्रोथ पे काम ज़्यादा होता है, पर्पज इज सेल्फ ग्रोथ। और चाइल्ड ड्रामा का फोकस जो है, बच्चे क्या आइडिया, चाइल्ड सेंटर्ड होकर के बच्चे जो आइडियाज क्रिएट कर रहे हैं उसको कैसे डेवलप करें ड्रामा के थ्रू, और आर्ट फॉर्म को यूज किया जाता है इसमें ज़्यादा। ये जो प्रोसेस ड्रामा आता है, दिस इज द ड्रामा एज ए पैडागोजी यूज की जाती है। इसके कुछ इसके स्टेप्स हैं, कुछ इसके प्रिंसिपल्स हैं जो कि बहुत डिटेल में हैं। उसको हम अभी वर्कशॉप हो तो आपको टीचर के साथ इसको शेयर किया जा सकता है, क्योंकि इसकी टेक्निक्स हैं। इसको छोटे में तो आप कभी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके जो 6 पार्ट हैं उसको मैं छोटा से मैं बता देता हूँ। इसमें जैसे एरिस्टोटल ने 6 पार्ट ड्रामा को क्रिएट करने के लिए बताया, जो आप थीम, कैरेक्टराइजेशन एंड प्लॉट एंड स्पेक्टेकल, ये सब आप उनकी सुनते हैं। ऐसे ही इसके भी 6 पार्ट बने कि थीम, कॉन्टेक्स्ट आता है, लर्निंग कॉन्टेक्स्ट उसमें बनता है, और रोल होता है, साइन, टीचर टेक रोल्स, स्टूडेंट टेक रोल्स। टीचर टेक, इसका थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपके साथ करके अभी थोड़ा सा 2-3 मिनट एक आइडिया, आई विल गिव यू आइडिया लिटिल बिट। सो टीचर और दोनों, बस इतना समझना, टीचर और एजुकेशन, टीचर और लर्नर, यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ मिलके एक ऐसा ड्रामा जो लर्निंग के लिए है, नॉट फॉर द एंटरटेनमेंट। एंड इंटरप्रेटिव ड्रामा, इंटरप्रेटिव ड्रामा भी एक ऐसा है कि जो टेक्स्ट बेस्ड काम है, जितने भी टेक्स्ट है, जैसे मान लीजिए कोई स्क्रिप्ट यू वांट टू शेयर विद द स्टूडेंट्स, या कोई नॉवेल है, कोई स्टोरीज है, कोई आई थिंक रिटन वर्क जितने भी हैं, कोई टेक्स्ट बुक है बहुत सारे, इसको हाउ टू वर्क बच्चों को समझाने के लिए, यानी कि आप जो हमने आपसे बताया कि इफेक्टिव टू कॉग्निटिव में कैसे इसको डेवलप करें, क्योंकि बड़ों के लिए तो आप आते हैं, रीड करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, कोई एक्टिविटीज नहीं होती है, एंड इट्स वेरी मतलब बड़ों के लिए भी बोरिंग प्रोसेस है, तो बच्चों के लिए तो और भी बोरिंग प्रोसेस हो जाता है। सो इसलिए स्कूल में बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं इन्वॉल्व, क्योंकि वो एक्टिव लर्नर नहीं है। तो ड्रामा ये एक्टिव लर्नर भी अगर आपने बना दिया बच्चों को, तो आपका काम खत्म हो गया, ऑटोमेटिकली बच्चे सीखना शुरू कर देंगे। थिएटर एजुकेशन एंड ड्रामा एजुकेशन, दिस इज, अब ये थोड़ा सा लंबा सब्जेक्ट है, लेकिन 1-2 पॉइंट आपको क्रिएट कर देता हूँ। तो थिएटर इन एजुकेशन है, ये एक एक्टर कैसे टीच करता है बच्चों को स्कूल के अंदर, एंड ड्रामा इन एजुकेशन एक टीचर अकेले कैसे लेसन और क्लासरूम के जो टेक्स्ट बुक हैं या जो कैरिकुलम है उसको एड्रेस करता है। जो भी कैरिकुलम डिसाइड हुआ, या नेशनल कैरिकुलम ने किया हो या स्कूल ने खुद अपना एक कैरिकुलम डिसाइड किया हो, तो उसको वो डील करता है दोनों रूपों में,
एज अ सब्जेक्ट, एज अ मेथड। एज अ मेथड में ये जो एज अ मेथड में ये सारी चीजें जो ऊपर हमने बताई वो डील करता है। एंड रोल एंड थिएटर एजुकेशन में एक एक्टर टीचर की टीम होती है, एक्टर्स होते हैं जो जाकर के स्कूल के अंदर पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए डिजाइन किया हुआ एक रिसर्च वर्क और एक पॉलिश्ड वर्क देते हैं जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। और उसमें भी पार्टिसिपेशन का कुछ फ्रेम है, अलग अलग है। ऐसा नहीं कि सम टाइम बच्चे सुनते हैं, सम टाइम बच्चे इंटीग्रेट करते हैं, उसको इंटरप्रिटेट करते हैं एक्टर के साथ मिलकर के किसी इशू को, एंड सम टाइम रोल प्ले भी करते हैं, एंड सम टाइम वो एक परफॉर्मेंस भी देख रहे होते हैं और उस परफॉर्मेंस के बाद उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आपने देखा होगा जो हमने आपको वीडियो दिखाया है उसमें बीच बीच में बहुत सारा बच्चों के साथ रिफ्लेक्शन है। तो वो नाटक ऐसे ही शुरू होता है, फिर स्टॉप होता है, फिर बच्चे उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट पे जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे करते करते तो कैरेक्टर के भी एस्पेक्ट पे बात करते हैं, उसकी सिचुएशन पे भी बात करते हैं, कंटेंट पे भी बात करते हैं, और उनके वो अपने एक्सपीरियंस से बात करते हैं। तो हमारा काम होता है उनसे रिफ्लेक्शंस को क्रिएट करवाना, क्या समझ रहे हैं, और अगर वो उनको चैलेंज देना कि ऐसा कैसे समझ रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं, और आगे क्या उसके ऊपर वो इसको सॉल्व करने के लिए सोच रहे हैं। तो फियर ऑफ मैथमेटिक्स पे था, तो बच्चों ने बहुत सारा आइडिया अपना मैथमेटिक्स का दिया कि वो क्या सोचते हैं। तभी हो पाया कि जब हमने उनको प्लेस ये मटेरियल उनके सामने रखा और रिफ्लेक्ट करवाया। ड्रामा इन एरिया ऑफ लर्निंग बेस्ड ऑन एक्चुअल करिकुलम टेक्स्ट, ये हम पहले भी आपको थोड़ा सा इसको स्टेब्लिश कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। सो करिकुलम एक्चुअली हम यहाँ पे एक इनको ये भी बताते हैं क्योंकि जो स्कूल में टीचर्स प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, फेस क्या करते हैं, टीचर के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो कहते हैं कि हमें तो एग्ज़ाम लेना है, हमें तो राइटिंग करवानी है, जो टेक्स्ट पढ़ाया है उसकी राइटिंग भी करवानी है। अगर आप ड्रामा ही खिलाओगे तो वो कब राइटिंग का ऐसा होगा, पेरेंट्स भी देखते हैं, प्रिंसिपल भी देखता है, तो दिस इज द बिग प्रॉब्लम। या बच्चों की जो एक्सरसाइज होती है क्वेश्चन आंसर की, वो हम कैसे काम करें। सो यहाँ हम स्टूडेंट को एक करिकुलम ड्रामा के नाम से उनको हम बताते हैं ये जो सारी टेक्निक्स हैं इनको यूज करते हुए कि जो चैप्टर है उस चैप्टर को जो उसके एक्सरसाइजेस हैं उसको भी हम अपने मॉड्यूल में शामिल, मतलब अपने लेसन में शामिल कर लेते हैं। तो बच्चा जब उसको करता है तो लास्ट में उसको उस क्वेश्चन आंसर को करने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि उस क्वेश्चन आंसर ड्यूरिंग द लेसन वो कंप्लीट कर चुका होता है। सो 1 मिनट, हेलो, अच्छा चलो, जस्ट आई एम जस्ट 1 2 3, हाँ बस। So quickly I am coming here. This is a practice, ये स्कूल में जाकर के करिकुलम ड्रामा प्रैक्टिस करते हैं, एंड देन ये परफॉर्मेंस में स्टोरी टेलिंग, सिंगल स्टोरी टेलिंग परफॉर्मेंसेस एंड स्टोरी थिएटर की परफॉर्मेंसेस, इसमें से कोई एक चीज़ वो करते हैं। एडल्ट परफॉर्मिंग फॉर चिल्ड्रन की परफॉर्मेंसेस होती हैं एज चिल्ड्रन, बच्चा बनकर के कैसे, इसकी भी ट्रेनिंग उनके साथ दी जाती है। एंड पार्टिसिपेटरी टेक्निक्स और इंटरैक्टिव टेक्निक्स क्या है परफॉर्मेंस की एज एन एक्टर, तो वो बच्चों के साथ कैसे वर्क होता है, तो उसका भी एक प्रोडक्शन बनता है। जो पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम आपने देखा वो इस तरह के प्रोग्राम्स भी, या कोई इंटरैक्टिव और भी मेथड से काम हो सकता है। डिवाइस प्ले, किसी भी, जब हमारे पास कोई मटेरियल नहीं, किसी भी मटेरियल को हम कैसे कोलैबोरेटिवली डिवाइस कर सकते हैं, मिलके एक्टर, टीचर्स और सारे ग्रुप मिलके एक परफॉर्मेंस कैसे डिवाइस कर सकते हैं। तो इसमें उनको ज़्यादा सीखने के लिए मौका मिलता है। और टेक्स्ट बेस्ड भी काम को हम बताते हैं कि जो स्क्रिप्ट है उसको भी कैसे आप परफॉर्म करते हैं, और फिर इसका एजुकेशनल यूज क्या है। थिएटर वर्कशॉप विद चिल्ड्रन प्रैक्टिसेस, ये जो वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, और इसके हमारे इसमें 1 महीने का जब कोर्स खत्म होता है तो 1 महीने की वर्कशॉप होती है बच्चों के साथ। तो वो एक वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं जिसमें 15 डेज वो बच्चों के सेल्फ ग्रोथ के ऊपर काम करते हैं, और बहुत सारी जो टेक्निक्स उन्होंने सीखी होती है उसको वो अप्लाई भी करते हैं बच्चों के साथ। और फिर एक मेकिंग प्ले, एक प्ले बनाते हैं जो इम्प्रोवाइज करते हैं बच्चों के साथ मिल करके, और उसकी परफॉर्मेंस ऑडिटोरियम में होती है।
तो ड्यू टू द कोविड-19 इस बार हम वो नहीं कर पाए, लेकिन इस बार हमने एक रिसर्च वर्क किया कि हम कैसे ऑनलाइन इस काम को अडॉप्ट कैसे हम ऑनलाइन करें। तो आई वुड लाइक टू से कि वो ऑनलाइन का जो थोड़ा सा ग्लिम्सेस हमें आप दिखाएं, देन आई विल टॉक टू यू कि कैसे हमने ऑनलाइन के काम को अडॉप्ट किया और इसके क्या रिजल्ट आए, ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। सो ये जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कभी इस काम को, वो लोग प्लीज हमारे इस वेबसाइट पे जा करके अभी 1 हफ्ते के बाद कभी भी ये न्यू एडमिशन्स के नोटिस आएंगे तो यू कैन ज्वाइन इट एंड डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। क्विकली मैं थोड़ा सा ये बता दूंगा, हम लोग कुछ 3 डेज वर्कशॉप करते हैं, हमारे पास आउट स्टूडेंट कुछ ट्राइबल कम्युनिटी के साथ वर्कशॉप करते हैं, बच्चों का संडे क्लब एंड समर थिएटर वर्कशॉप काइंड ऑफ वर्क भी चलता है, टीचर ट्रेनिंग्स वर्कशॉप, क्रिएटिव पार्टनरशिप प्रोग्राम ये है कि जिसमें सब्जेक्ट टीचर के साथ मिलकर के ड्रामा टीचर दोनों मिलकर के क्लासरूम में काम करते हैं। ऐसे भी कुछ लोगों ने हमारे साथ काम किया है। और टीआई ओरिएंटेशन कोर्स जो एक बार किया, दूसरी बार अभी तक हम नहीं कर पाए, लेकिन हम जल्दी इसको भी करेंगे। और आर्ट इंटीग्रेशन का कोर्स भी मतलब कोर्स क्या, ये वर्कशॉप्स हम शुरू करेंगे। तो ये एडिशनल प्रोग्राम है जो 1 ईयर कोर्स के साथ साथ चलते हैं। और ये फोरम थिएटर हमारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, यू कैन सी द पिक्चर। ये हमारा स्टाफ है जो 5 लोगों का है जो हमारे साथ काम करता है। ये फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच एंड ये फर्स्ट बैच है हियर। फर्स्ट बैच में आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से चंद्रमोहन इसी बैच में के हैं और मंजूश्री वेंकटा भी इसी बैच की हैं। और ये हमारे बहुत सारे, धुंधली पिक्चर होगी, आप नहीं देख पा रहे होंगे ज़्यादा। ये 4 बैचेस एंड नेक्स्ट 2 मोर एंड दिस आर, ये हमारा उन्ना कोटी यहाँ का एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। ये भारत में, ये त्रिपुरा यहाँ है और ये त्रिपुरा है, ये पूरे भारत में ये यहाँ त्रिपुरा है। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये त्रिपुरा है और ये है त्रिपुरा का छोटा सा, इट्स ए स्मॉल स्टेट बट वेरी कूल एंड क्वाइट। आप कभी इस वेबसाइट पे जा करके आप देख सकते हैं पूरा मटेरियल एंड यू कैन डाउनलोड द न्यू प्रॉस्पेक्टस। एंड ये कोई क्वेश्चन होगा तो इस पे आप भी ईमेल कर सकते हैं मेरे लिए। एंड सो दिस इज दिस, इसमें 2-3 चीज़ें और हम आपको शेयर करना चाहेंगे। मैं स्क्रीन शेयर ऑफ करता हूँ। हेलो, यू आर लिसनिंग? यस सर। हाँ, यस। सो एक और चीज मैं इसमें कहना चाहूंगा, वो क्लिपिंग्स प्लीज न्यू क्लिपिंग्स थोड़ा सा आपको ऑनलाइन पे कैसे वर्क कर रहे हैं, सो आई विल, यू कैन गेट द आइडिया, देन आई विल एक्सप्लेन मोर थिंग्स। All right, Shaurya, it's your turn. बताइए आपका फेवरेट ऑब्जेक्ट क्या है और उसके साथ जुड़ी हुई कोई मेमोरी हमारे साथ शेयर करिए। My favorite object is this. What is this? बताइए। Ma'am, this is Ganesh ji. My mother and father has brought me for. Ma'am, my mother and father has brought me for me. All right, और इससे जुड़ी हुई कोई मेमोरी? मैम, जब मेरे मम्मी पापा ये लाए थे तो मैं 1-2 दिन तक इसको अपने पास ही में रखी गई। All right, तो ये आपको बहुत पसंद थी। दोबारा से दिखा दीजिए सबको कैमरा पे वो ऑब्जेक्ट। Yes, everybody, you can see Shaurya sharing with us. Lovely, lovely. Thank you, Shaurya. Thank you for sharing. Okay. So little bit, I will tell you. Actually, this is the very crisis कि कोर्स खत्म हो रहा है and there is no interaction with children. So इन्होंने जो एक्सरसाइजेज जो डिजाइन था वर्कशॉप का, उसको उन्होंने कुछ पोर्शंस उसके ऑनलाइन अडॉप्ट किया। सो मैंने ये देखा कि बच्चों का रिस्पांस
बच्चे क्लास कर रहे हैं, अभी तो स्कूल में भी ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, और जो हमारी वर्कशॉप 4 बजे है तो वो भी बच्चे कर रहे हैं। तो उसमें मैंने देखा कि सुबह की क्लास में दे आर नॉट एक्टिव, वो बस टीचर पढ़ा रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं और बंद भी कर देते हैं एंड दे गो इधर उधर, ध्यान नहीं। लेकिन द पेरेंट्स वजह से वो ऑनलाइन खोल के बैठ जाते हैं, सब कुछ रेडी कर देते हैं, घर में सभी को भगा देते हैं और वो अकेले बैठ के और वो रेडी फॉर द वर्कशॉप, और वो इतने एक्टिव होते हैं उसमें कि बहुत सारे अच्छे रिस्पांस हमें मिले। किसी बच्चे के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो वो कहीं बाहर ढूंढ के इंटरनेट को ढूंढ रहा है, कर रहा है वेयर देयर इज ए नेट। सो इस तरह से वो बहुत सारी उनकी स्ट्रगल के साथ थे, और हमने इम्पैक्ट देखा, जो इम्पैक्ट हम फिजिकल वर्कशॉप में करते हैं, सेम इम्पैक्ट वी गॉट ऑनलाइन वर्कशॉप। बिकॉज ये क्यों हो पाया, क्योंकि जो थिएटर वर्ल्ड के लोग हैं वो कैन नॉट इमेजिन कि इस पे रिहर्सल कैसे करें, इस पे वर्कशॉप कैसे करें, इस पे टीचिंग कैसे करें, क्योंकि हमें रिफ्लेक्शन चाहिए, हमें इंटरेक्शन चाहिए। तो थिएटर एजुकेशन जो कि 90s से ही ऑनलाइन भी काम और ये वर्चुअल वर्ल्ड पे भी काम शुरू कर दिया था, तो बहुत सारे इसके हमारे पास प्रैक्टिसेस हैं, जो प्रैक्टिसेस हम अभी तक शुरू नहीं कर पाए, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो समय आ गया कि उन प्रैक्टिसेस को हम शामिल करेंगे, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन जो हम कैसे यूज करेंगे। तो उसको चूंकि बाकी लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं था तो हमने जूम को एक्सप्लोर किया, एंड वन थिंग इज आई विल टेल यू कि कैसे हमने इसमें इंटरेक्शन को क्रिएट किया। One is I have a regular practice for school asking regular classes for 2 periods for classes, and working with children and working with the teachers and classroom educations. If admin open the Rama name website, name ko open, I will show my slides. That's why I'm waiting. And this is okay. I can work inside the school with teachers for creating activity in the classroom, and using a theatre in education program. I create nationalism in India, French Revolution. These are the subjects in the class 10th and 9th. I use them as a actors, and I create a theatre in education programs. And next, I can work with the community. The children do the street plays for the community. They will go outside and they perform, and they communicate with they interact with the society with their potential of doing theater, addressing the public issues, and it gives me more potential for working with teachers who, in the subject teachers who design, who want to do some activities in the classroom. I can help them in the classroom, and I learn from them. I learn mathematics from them. Then I direct one place, Pythagoras theorem. I ask them that please give me, first you teach me the Pythagoras theorem, then only I can teach through theater, because I know the skill of theater and presentation, and you have to teach me in math. So they teach me the Pythagoras theorem, and we jointly present a play, and we do a theater education production in Pythagoras theorem, maths also, and science, and all the subjects we can help. Next, what we can do is working with community. In the school we are working, we have a community of gathered children. We have the parents, and I'm doing a Sunday theatre workshops, and 1 month theatre workshop for children in the summer, and in all the end of the productions, I have presented a plays, and in the end of the presentation workshop, we have a play presentation in the form of theatre and education method. We derive the play like creative drama. I derive that play, and then because of that I have a community link with the local peoples, and that community link give me a platform to perform my mainstream theatre, which artist I want to perform. So I can choose the subject which I can't work in the school, so I can work on the workplace. In my theatre group, I am running a theatre group. It's Red Elephant Theatre Company. It's working in Tiruvannamalai, and I am working for children and teachers and societies
That's it, sir. Thank you, sir. Okay, thank you very much. Actually, very necessary to listen what kind of work is our student doing in Tamil Nadu, because one person is doing it. So, if you have a 2-3 minutes, so I Yes, will sir. like to explain one thing. We are missing this one, because this is the very practical idea Sir, I want to do. So this is I want to share this one. okay, sir. Okay, sir. This is the screen presentation. I will share. So this is the painting. I would like to tell you कि हम थोड़ा सा आपको जो ड्रामा एजुकेशन जो टीचर और इसके बीच में जो जो टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो ड्रामा है वो कैसे डेवलप होता है उसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ. आइडिया इज वन कि मान लीजिए टीचर एक टीचर इन रोल में है कि हिज फ्यूचर के एक गाइड है जो बच्चों को टाइम मशीन में एक फ्यूचर में ले जाने के लिए एक गाइड के रूप में वर्क करेगा. टीचर इन दिस रोल, सो ही समटाइम ही कमांड, समटाइम ही गिव द सपोर्ट. एंड बच्चे किस रोल में होंगे? तो बच्चे जो 40 बच्चे स्कूल के अंदर हैं या जितने भी बच्चे हैं, तो हमने बच्चों को एक रोल दिया एज अ साइंटिस्ट. एक्चुअली ये एक मेथड है मेंटल ऑफ एक्सपर्ट. बच्चों को एक्सपर्टीज के रोल बड़े पसंद आते हैं कि किसी एडल्ट के रोल को अगर वो दे दें और हम उनको एक्सपर्ट बना दें तो उनके लिए बड़ा प्राउड का विषय है कि आई एम द एक्सपर्ट. एंड बच्चों से ये पूछा जाता है कि अच्छा एक्सपर्ट का काम क्या है, कैसे काम करता है. वो थोड़ा सा बताते हैं कि या साइंटिस्ट इज, उनके पास जो भी नॉलेज होगा ही गिव. तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्सपर्ट हैं, बट एक्सपीरियंस जिंदगी का है और हम उनको सिखा रहे हैं कि हाउ साइंटिस्ट वर्क, कैसे साइंटिस्ट वर्क करते हैं. सो एक्सप्लोर कर रहे हैं. सो मान लीजिए कि दिस इज द वन प्रोग्राम कि जिसमें बच्चे साइंटिस्ट हैं और हम गाइड हैं. हम उनको फ्यूचर में ले जा रहे हैं. फ्यूचर माने यानी कि टाइम मशीन में ले गए और फ्यूचर दिखा रहे हैं. एंड हम उनको ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें एक ये पिक्चर दिया है. एक्चुअली दिस इज द डॉली पिक्चर, यू नो वेरी वेल, इज अ सरिस्टिक पेंटिंग, मेल्टेड वॉच. सो हम उनसे ये पूछ रहे हैं कि ये वर्क, ये कैसे काम, ये क्या पिक्चर है, इससे हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बताना है कि हमारा जो फ्यूचर है वो कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, या हम क्या सजेशन देना चाहते हैं इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हमें क्या क्या करना चाहिए, चाहे वो स्कूलिंग का हो, चाहे वो एनवायरमेंट का हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे वो ये. अब आप कहेंगे कि ये विषय तो बच्चों के लिए नहीं है, तो बड़े बड़े नहीं सोच पा रहे हैं. नहीं, लेकिन बच्चों को इमेजिनेशन करने का मौका पूरा मिलना चाहिए कि वो फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं इस पेंटिंग के थ्रू. सो बच्चे इसको एग्जामिन करेंगे एंड देट से समथिंग. हम रिफ्लेक्शन लेंगे उनसे कि या बोलो 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 क्या तुम्हें लगता है. एंड वन बाय वन दे एक्सप्लेन द कि किस तरह की फीलिंग. लास्ट 2 डेज बच्चों ने बहुत अच्छा इसके ऊपर एक्सप्लेन किया. हम उनको कैसे विजुअलाइज करा के इसके अंदर ले जा रहे हैं ऑनलाइन में. ये देखिए, हम बच्चों से पूछते हैं कि आप इसके अंदर गए, इसको इमेजिन कीजिए कि बच्चे, अगर आपके पास बच्चे हैं तो हम डायरेक्ट करके भी सकते हैं, लेकिन वी हैव नो टाइम, इट विल टेक टाइम. सो हम जल्दी जल्दी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि एक्सरसाइज क्या होती है. इसमें 5 सेंसेस की एक्सरसाइज हम कर रहे हैं. पहला, बच्चे को हमने बोला कि आप इसके अंदर हैं तो आप क्या देख रहे हैं, आप क्या साउंड सुन रहे हैं, आप क्या टच फील कर रहे हैं, आप किस तरह का टेस्ट फील कर रहे हैं, एंड व्हाट काइंड ऑफ यू टचिंग. तो बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स निकाल के दिए इसके अंदर. एंड देन एग्जामिन किया कि ये कैसा वक्त है, ये किस तरह की दुनिया है. ये टाइम मशीन में है तो ये फ्यूचर को देख रहे हैं. फ्यूचर क्या, ऐसे टाइम भी डिस्ट्रैक्शंस पे है, पानी, ये वो सब कुछ. एंड देन इसको कैसे अभी से ठीक किया जाए, वापस प्रेजेंट में आते हैं बच्चे. एंड देन फिर आस्क द टीचर इन रोल. टीचर जो है रोल लेकर के फिर पूछता है कि वाह टेल मी कि अब हम प्रेजेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक सजेशन दें तो क्या सजेशन दे सकते हैं कि हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर राइट नाउ, कि ताकि हम अगले 50 साल या फ्यूचर ठीक रहे. तो साइंटिस्ट जो है आपस में ग्रुप में काम करके कुछ रिसर्च वर्क निकाल के बच्चे हमारे सामने, ये लेसन हो चुका है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हो सकता भी है. तो वो बच्चे हमें बताया भी और हम कर भी सकते हैं. तो बच्चों का जो भी रिफ्लेक्शन आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा और वो बहुत ही जीनियस, क्योंकि बच्चे नेचुरल फिलोसोफर होते हैं, उनके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं
उन आइडियाज को थिएटर एजुकेशन, ड्रामा एजुकेशन का काम है कि अपने टूल्स से इनरिच करना, ना कि हमें कुछ उनको सिखाना है, बल्कि उनको इनरिच करना। तो वो हमारे पास ये आइडिया लाएंगे, और वो आइडिया रिटन में भी ला सकते हैं, वो आइडिया परफॉर्मेंस में भी ला सकते हैं, वो आइडिया वर्चुअल वर्ल्ड में भी कोई इमेजेस बना करके हमें दे सकते हैं, सो दैट आगे का जिंदगी हमारा कैसा होगा। बच्चे फ्यूचर को सोचें, क्योंकि उनको फ्यूचर सोचना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय इट्स वेरी डेंजरस फॉर एवरीबॉडी। तो बच्चे थोड़ा अलर्ट होंगे कि हमें स्कूलिंग के बारे में कैसे सोचना है, एनवायरनमेंट के बारे में क्या सोचना है, और अभी से एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या हमें इंडिया को क्या काम करना होगा। तो इस लेसन के थ्रू वो आज के समय को बहुत अच्छे से दे कैन एनालाइज। अच्छा, अब ये तो हुई हमारे ये ड्रामा एंड एजुकेशन और प्रोसेस ड्रामा, इसमें और भी बहुत सारे कन्वेंशंस हम यूज कर सकते हैं। सो आइडिया इज ये कि ऑब्जेक्टिव ये है कि इसको हम कैसे बच्चों को फ्यूचर में देखें। दूसरा एक एक्सरसाइज आई विल गिव यू वन स्मॉल, अगर थिएटर का कोई बंदा इसको एक्सरसाइज को करेगा तो स्टेज पे ये सारी चीजें, कलर और ये कंपोजिशंस कैसे दिखेंगे, इसके ऊपर काम करेगा। बट थिएटर एजुकेशन और ड्रामा एजुकेशन के लोग जब काम करते हैं तो वो इसकी कोशिश करते हैं कि इससे लर्निंग हमारी क्या होगी। तो ये हमारा प्री रिसोर्स है, ये हमारा प्री टेक्स्ट है, ये हमारा एक रिसोर्स मटेरियल जिसके ऊपर हम लर्निंग कुछ और कर रहे हैं। लेकिन ड्रामा अगर थिएटर के लोग होंगे तो वो इस पे ऐसा ही विजुअल स्टेज पे कैसे क्रिएट होगा, दे इमेजिन, बिकॉज द टास्क इज की परफॉर्मेंस है उनकी। तो सेम विजुअल कैसे क्रिएट करेंगे, क्या मटेरियल यूज करेंगे, किस तरह का कलर यूज कर, इसको किस कलर किस मटेरियल से ये स्टेज पे ऐसा ही दिखेगा। तो दिस इज द थिएटर एक्सरसाइजेज हो जाती हैं। तो हमें ये समझना है कि हम पर्पस हमारा क्या है किसी काम को करने का। इसी तरह से हम किसी नॉवेल को लेकर के और हर तरह से काम कर सकते हैं, किसी पोइट्री को लेकर के, किसी आइडियाज को लेकर के, so many things. So this is the last part. So I will I will give you one. This is the book. I recommend you, all of you. This is a very small and very small book. The name is Theatre and Education, Helen Nicholson. ये शायद इसकी इमेजेस आपको अपोजिट दिख रही होगी, so because of the mirror, या सीधी दिख रही है, but you can write down Theatre and Education, Helen Nicholson. In this small packet, it's a 500 rupees. I think you can get from the Amazon and otherwise. It's a very small book, but in 21st century, what is theater, what is education, and what we can do for the future. So all the work is in very concise way. You can read it and we can understand it. This one is okay. So this is one thing. And one more thing I would like to gift for the teachers, if you want to read, because we cannot give you training, so you must read. जो टीचर है हमारे, उनको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। इस अगर वो जो जिस टेक्निक्स की हम बात कर रहे हैं, इसको स्कूल के अंदर करने के लिए, और ये सेल्फ लर्निंग के लिए किताब लिखी गई है। टीचर कैन, any teacher is a subject teacher, drama teacher and parent, या जो नहीं भी ड्रामा जानता है, अगर वो उसको पढ़े तो if they can get it, तो उसको आराम से समझ सकता है। The name of the book is Drama 711. This is the book. You can images you can see, and this is a developing primary teaching skill. Primary teaching skill मतलब जो एक basic चीजें हैं, you can get it. I think it's a free on website. You can search it. You can get this book free. So it's very important book. मुझे आपको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. If you are a teacher, you can understand the whole book, because there is a self learning exercises is going on in this book. So you can get the idea of this, whatever I am saying in this webinar. So you can get the little bit glimpses of this from this book.
So I will give you 2 books and I will give you 1 app as a drama maker. You can also check it for your kids. So बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा है drama maker. You can use it. So this is my side, and I am very thankful to all organizers. Is Kumar Guru Engineering College, Coimbatore, and Telescope, and 5W Theatre Groups in my team, and Honorable Nisar sir. Thank you very much. You patiently listen to me, and over to your organizers. This is my all things from Tripura side. So thank you very much. And if you have a question, and I will.